So, hi everyone. Uh, my name is Anshul Singh, and I have secured AAR 873 in UPSC Civil Services 2025. Uh, Considering talking about my journey first, this was my second attempt, my first mains, and my first interview. So, I've been fortunate enough that I have been able to crack this exam in my second attempt only. In my first attempt, I was not able to clear prelims. I flirted in prelims by 1.36 marks. I scored 121 in actually in CSAT. This year also I've scored 104 in CSAT. But last year I missed the prelims cutoff, GS1 paper 1 cutoff by GS paper cutoff by 1.36 marks. This year I have scored 102.66 in my GS paper in prelims. So as far as my journey is concerned, I think first of all, just a brief introduction about myself. I've done my graduation uh, in BA Honors Journalism from Delhi University, Delhi College of Arts and Commerce, followed by which I've done my masters in Convergent Journalism from Jamia Millia Islamia, which I completed in 2024. And then following this, I think I've devoted 2.5 years to this exam, where I started, मतलब मेरे को ये लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करना चाहिए. Then following that, I entered into this. As far as my coaching is concerned, I've done my foundation courses from Vajiram and Ravi from 2023 to 2024 in the last year when I was there in the last year of my masters. Apart from that, also that was a 1 year program. And as far as the later part of the journey is concerned, last year I joined dedicated mains test series as well. I've also been a part of Jamia RCA, if you have heard the name, which provides free coaching to students and especially to the students of the minority community as well as to the marginalized communities. So that has been my background. As far as my journey is concerned, as I have stated that this was my second attempt. In the first attempt, I was not able to clear prelims itself. So the particular aspect that I'd like to focus upon on this conversation is about how can you actually excel when it comes to prelims. As far as the strategy is concerned, regarding prelims, I think this is the best time for you to study. Now, hardly 60 days are left for the prelims examination to begin. And uh, as far as right now the things are concerned, maybe most of you have joined dedicated test series, and the some of you might also have joined dedicated programs like mentorship programs. But more so I would like to focus that आप लोग static को strong करने पे ज़्यादा focus कीजिए. There are limited resources. Resource constraint is one of the areas that needs quite a bit of attention these days because there's been a content overload. अपने स्टैटिक सोर्सेज को स्ट्रॉन्ग कीजिए. व्हेन इट कम्स टू पॉलिटी यू शुड बी थरो विद लक्ष्मीकांत. व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी क्लास 11th एनसीईआरटीज आर लाइक अ बाइबल बिकॉज क्वेश्चन वहाँ से कॉपी पेस्ट हो रहा है. So you should be thorough in that. You should be very well aware about those things, that whatever there is in these books, you should be quite familiar because 80% of the polity, 80-85% of the polity can be handled easily with Lakshmikant. As far as geography is concerned, last के 2 साल के papers देखेंगे आप 2024 2025, largely questions are coming conceptual based पे from NCRTs only. Even if there is an analytical part which is there, like हम international dateline का जो question था, that can be handled with you if you have that conceptual clarity regarding geography. When it comes to economics, आप notes refer कर सकते हैं. मृणल सर के notes हैं, श्रीराम आईएस के notes हैं, अलग अलग नोट्स हैं, वट एवर देयर इज. एंड जो इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्लैरिटी की किताब है दैट इज लार्जली योर क्लास 12th या 11th की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है. माइक्रो को यू कैन लार्जली इग्नोर, एक आधा वीडियो यूट्यूब पे यू कैन वॉच किसी का भी. बट 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब बहुत इंपॉर्टेंट है. बी इट बजट के भी जो ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमी पे जो क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमी, एंड ऑफ कोर्स नेशनल इनकम अकाउंटिंग पे जो क्वेश्चन आते हैं, दे आर लार्जली दैट. सो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप उस पर फोकस करें. And when it comes to other areas like other areas like history for example, जिसमें इस बारी आसान सवाल बन गए थे, तो वो बहुत इजी हो गया था कि लाइक जो आपके पास आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज है. फॉर एग्जांपल यू हैव हिस्ट्री के लिए यू हैव एनसीईआरटी ऑफ तमिलनाडु, दैट बिकम्स अ क्रिटिकल एस्पेक्ट.
क्लास 11th की जो ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं, जैसे मेडाइवल की है, एंशिएंट की है, वो आप देख सकते हैं। एक रीडिंग उसकी लगानी आई थिंक इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो वो एक रीडिंग आप लगाइए और कम से कम एक रीडिंग लगाइए एनसीईआरटीज़ के बारे में, उसमें आप ढंग से पढ़ सकते हैं। एंड स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिपिन चंद्र कैन आल्सो बी कंसल्टेड, आई हैव कंसल्टेड स्पेक्ट्रम ओनली। कम से कम 2-3 रीडिंग उसकी इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 2 डायनामिक पोर्शंस लाइक एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक के लिए बेसिक नोट्स यू कैन रेफर ऑफ एनी कोचिंग इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन योर स्टैटिक्स एक्चुअली। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड सेकेंडली ऑल्सो यूल हैव फॉर एनवायरनमेंट ऑल्सो अपना स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपको क्लास 12th की बायोलॉजी के 13, 14, 15, 16 जो चैप्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बिकॉज उसमें बहुत डेफिनेशन बेस्ड सवाल हैं जो यूपीएससी आजकल पूछ रहा है। सिमिलरली फॉर क्लास 12th ज्योग्राफी, जहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड एरियाज पे काफ़ी ज़्यादा सवाल होते हैं। सो यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड विद दीज काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स एज वेल, है ना? और आई थिंक कमेंट्स आई टेक लेटर ऑन। अभी आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट्स में, आई टेक लेटर ऑन। फर्स्ट आई कवर द एरियाज दैट आई हैव प्रिपेयर्ड, तो बिकॉज सारे एस्पिरेंट्स को कवर करना है। And as far as these dynamic portions are concerned, I took a dedicated current affairs program from Target UPSC. That is Target 140 plus course. That also you can take. Otherwise, Mudit Jain sir के notes directly available हैं. Free PDFs इस बार available हैं उनकी. तो आप वहाँ से भी current affairs को कर सकते हैं. Especially when it comes to subjects like science and tech, environment and IR. प्लेसेस इन न्यूज़ जिसे बोला जाता है, एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सवाल प्रीलिम्स में आते हैं। व्हेन इट कम्स टू स्ट्रैटेजीज लाइक सीसैट, आई थिंक दैट हैज़ बीन माय वन ऑफ द कोर स्ट्रेंथ। सीसैट का जो एरियाज होते हैं और जो सीसैट का दैट स्पेशली मैथमेटिक्स व्हेन इट इज कंसर्न, तो सीसैट के लिए आई थिंक यू जस्ट नीड टू बी थरो विद सर्टेन एरियाज, सर्टेन स्पेशलाइज्ड एरियाज जिसे बोला जाता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम में यू हैव दीज काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक रिमाइंडर थ्योरम का जो कंसेप्ट्स हैं वो लगातार पूछे जा रहे हैं, पावर वाले जो कंसेप्ट्स हैं लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं इवन इफ यू आर वीक इन मैथमेटिक्स। इन सबको आपको प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। यूट्यूब पे देयर आर फ्री लेक्चर्स अवेलेबल, रिमाइंडर थ्योरम के हो गए ना, और बाकी चीज़ों के हो गए। सो दैट वुड बी अ क्रिटिकल एस्पेक्ट कि आप इन चीज़ों को प्रिपेयर किया कैसे किया जा सकता है। देन हाई यील्डिंग एरियाज़ लाइक परसेंटेज हो गए, प्रॉफिट लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इन सब चीज़ों को भी आप प्रिपेयर ईज़िली कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स के इवन आपके 10 से 12 सवाल भी सही होते हैं, देन आल्सो यू विल बी एबल टू क्लियर सीसैट। इट शुड नॉट बी अ बैरियर। रीजनिंग के सवाल बहुत आसान आते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स को आपको कैच अप करना पड़ेगा। पेपर को घुमाते रहिए, देखते रहिए, क्योंकि लो हैंगिंग फ्रूट्स आपको हर जगह मिलते हैं। सो दैट इज़ व्हाई दैट इज़ अनदर की एरिया। और इंग्लिश को तो क्या आपको पता ही है आजकल ज़्यादा सब्जेक्टिव होती जा रही है। सो इफ इट इज़ बिकमिंग सब्जेक्टिव देन द रिलायंस ऑन इंग्लिश शुड बी रिड्यूस्ड। ऑफ कोर्स वन्स यू आर रियली श्योर अबाउट अ सर्टेन आंसर तो आपको करना चाहिए। बट देन अगेन इवन इफ यू आर अटेम्प्टिंग 40-45 क्वेश्चंस, तो इन सीसैट यू विल बी एबल टू क्लियर इट, तो उसमें ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आते हैं। सो वही है कि दैट आर द की एरियाज़ कि सीसैट इससे निकाला जा सकता है। डेडिकेटेड कोर्सेज़ लेने की, पेड कोर्सेज़ लेने की, पेड बैचेज़ लेने की एज़ सच कोई नीड नहीं होती है। तो इससे ये एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है। अगेन ओके, समबडी आर आस्किंग आपकी स्ट्रैटेजी सीसैट की, बिकॉज़ आई एम सीइंग सीसैट, तो आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए, सीसैट की स्ट्रैटेजी एज़ सच कुछ होती नहीं है। सीसैट इज़ बेसिकली जो आपको पीवाईक्यूज़ हैं, जो थीम्स हैं, जैसे 2023, 2022, 2024 में आप देखोगे कि नंबर सिस्टम से बहुत सवाल आ रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में भी कौन से नंबर सिस्टम से सवाल आ रहे हैं, है ना? दैट एरिया बिकम्स एरिया ऑफ कंसर्न। फॉर एग्जांपल जो नंबर थ्योरम, जैसे मैंने रिमाइंडर थ्योरम का बोला, उसके सवाल आ रहा है, तो रिमाइंडर थ्योरम आपको पता होना चाहिए, उसके ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। देन यू विल आल्सो हैव क्वेश्चंस रिगार्डिंग पीएनसी, जैसे इस बार वो हैंडशेक वाला क्वेश्चन था, उसमें कुछ नहीं करना आपको, मतलब एनपी1, एनसी1, ये सब आपको पता होनी चाहिए। एंड दीज आर मतलब बहुत बेसिक से लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, 1-1 घंटे के लेक्चर्स हैं। सम ऑफ द एसएससी टीचर्स आल्सो टेक इट, सम ऑफ द यूपीएससी टीचर्स आल्सो टेक इट, तो उसको 1 घंटा निकाल के उसे खत्म कर दीजिए। देयर आर आल्सो सम फ्री लेक्चर्स और अवेलेबल जो पीवाईक्यूज़ के लिए अवेलेबल है, सीसैट के लिए। फॉर एग्जांपल मुदित गुप्ता सर का एक चैनल था, अब तो पता नहीं वो मतलब उसमें है या नहीं है, मतलब एक्टिव है या पैसिव है। बट उसमें पीवाईक्यू सर ने 2-3 सालों के कर रखे थे, 8-8 घंटे के मैराथन्स हैं, 2x पे देख लीजिए, और उससे क्वेश्चंस के आइडियाज़ हो जाएँगे, साथ ही साथ ट्रिक्स भी पता चल जाएँगी। ठीक है? बाकी भी डेडिकेटेड कुछ टीचर्स हैं जो सीसैट के बारे में लगातार पोस्ट करते रहते हैं, ट्रिक्स डालते रहते हैं, बट मैं कहूँगा कि ट्रिक्स से पहले आपको कांसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि नंबर सिस्टम है क्या, नंबर्स क्या हैं? और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्टेटमेंट लाइक क्वेश्चन, मंजुल सर एक हैं नेक्स्ट आईएएस के, वो भी कुछ फ्री लेक्चर्स डालते रहते हैं यूट्यूब पे ही।
तो मैं नहीं कह रहा हूँ उनका पेड कोर्स लीजिए, बट देयर आर सम ऑफ हिज़ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब जो आपको इस बारे में सिखा देते हैं कि ट्रिक्स क्या हैं, कंसेप्चुअल्स क्या हैं, वो सब क्या है, तो दैट बिकम्स एन एरिया। मंजुल सर ऑफ नेक्स्ट आईएएस। एंड देन द जो ये एग्ज़ाम्स आप सवाल मतलब जो फ्री टेस्ट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अनुभव हो रहा है नेक्स्ट आईएएस का या फिर विज़न का हो रहा है, इनकी वीडियोज़ भी यूट्यूब पे डलती हैं। इनमें भी टीचर सॉल्व करते हैं और कुछ ट्रिक्स बताते हैं। सो देयर आल्सो यू कैन एक्चुअली हैव दैट डेडिकेटेड गाइडलाइंस फॉर सीसैट व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना? तो ये लार्जली सीसैट और प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी है। आई थिंक आई जस्ट सी अ कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड देन आई मूव फॉरवर्ड। सर आई एम टोटली कंफ्यूज्ड, आई रिवाइज माय होल सब्जेक्ट बट आई फील इनकम्प्लीट, नेगेटिव मार्किंग हो रही है टेस्ट सीरीज में। या सो दिस इज अगेन क्रिटिकल एरिया जो एक्चुअली में देखा जाता है ना? कि नेगेटिव मार्किंग हो रही है। तो नेगेटिव मार्किंग के लिए व्हाट आई सजेस्ट इज़ जस्ट दैट कि मतलब आपको एक स्वीट स्पॉट होना चाहिए इन टेस्ट सीरीज़ दैट यू आर डूइंग एंड इवेंचुअली द फाइनल एग्ज़ाम। जैसे व्हाटएवर मतलब बहुत सारे टॉपर्स ऐसा कहते हैं कि 95, 90 ऐसे 100 सवाल करके आने चाहिए। आई अटेम्प्टेड इन दिस अटेम्प्ट इन 2025 ओनली 80 क्वेश्चंस। 80 क्वेश्चंस में से आई करेक्टेड 60 क्वेश्चंस। तो मैं एक्यूरेसी पे गेम खेला था प्रॉपर। देखिए रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जो आपको इस चीज़ से निकाल सकती है बाहर। यू मस्ट बी थरो विद योर रिवीजन। अभी 60 दिन बचे हैं। बाय द टाइम आई वाज़ प्रिपेयरिंग लास्ट ईयर बिकॉज़ जब तक मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था, आई हैड ऑलरेडी रिवाइज्ड एवरीथिंग एट लीस्ट वन्स। मान के चलिए कि इन 5 महीनों में या साढ़े 4 महीनों में आपको कम से कम 3 रिविजन्स करने हैं। एटलीस्ट स्टैटिक के तो 3 रिविजन्स करने ही करने हैं। करंट के 2 रिविजन्स भी होंगे, चल जाएगा। बट स्टैटिक इज़ वन एरिया जिसके आपको 3 रिविजन्स मिनिमम करके जाने हैं ताकि आप इन चीज़ों को भूलें ना। ये तो हो गया रिवीजन का पार्ट की। और टेस्ट को भी जब आप देते हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन को भी एक बार कम से कम पढ़ना है। वहाँ की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको नोट्स में लिखना है, ठीक है? तो टेस्ट के भी देने का तरीका है, सिर्फ़ 2 घंटे का टेस्ट देकर उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़कर काम नहीं चलता। कुछ चीज़ें आपको याद करनी है वहाँ पे भी। सपोज़ कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो आपके नोट्स में नहीं थी, तो आपको लिख लिया और आपने कुछ निमोनिक बना लिया और उसको याद कर लिया। कुछ एनवायरनमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ साइंस एंड टेक बेस्ड क्वेश्चन था जो आपके नोट्स में नहीं था, आपने उसे ऐड कर लिया। तो ये तरीके हैं टेस्ट सीरीज़ को देने के। और दूसरा टेस्ट सीरीज़ का जैसे बताया फ़ायदा कि आपको अपनी रेंज पता होनी चाहिए कि 85 से ऊपर अगर मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो मेरा नेगेटिव ज़्यादा जा रहा है। 75 से नीचे मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो मेरा हो ही नहीं पा रहा है। टारगेट फॉर अ मॉक टेस्ट सीरीज शुड बी मोर देन एटलीस्ट 100 मार्क्स। आपको वहाँ पे 100 मार्क्स चाहिए। अभी इस टाइम पे क्योंकि 60 डेज़ बचे हैं, इवन इफ यू आर स्कोरिंग समवेयर अराउंड 80, 85 मार्क्स या 75 भी आ रहा है, तो दैट्स नॉट एन एरिया ऑफ कंसर्न, वो बढ़ जाएगा। आपको एरियाज़ आइडेंटिफाई करने हैं कि फॉर एग्जांपल मेरी पॉलिटी में ज़्यादा सवाल नेगेटिव में जा रहे हैं, तो पॉलिटी मुझे अच्छे से रिवाइज़ करनी है। मेरा इकोनॉमी में मुझे सवाल आ ही नहीं रहे हैं, तो मुझे इकोनॉमी अच्छे से रिवाइज़ करनी है। अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है। हिस्ट्री में तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो हिस्ट्री के मुझे सोर्स कौन-सा लेना है, ये कहाँ से सवाल आया है, ये कहाँ जा रहा है, मेरे पास कितने सोर्सेज़ हैं, ये सब पता करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपको बस रिवीजन तो करना ही करना है। अगर आपको लग रहा है कि 7-8 घंटा पढ़ने के बावजूद भी आपको रिटेंशन नहीं आ रही है, तो आपको निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे। आपको टेस्ट सीरीज़ देना पड़ेगा। कुछ लोग लिख के रिवाइज़ भी करते हैं, तो आप लिख के रिवीजन भी कर सकते हैं क्योंकि आजकल प्रिंटेड नोट्स का ज़माना है, तो हम लोग लिखना बंद कर चुके हैं। बट लिख के भी रिवीजन बहुत अच्छा होता है, तो दैट इज़ अनदर वन एरिया कि जहाँ आप एक्सेल कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन एरिया फ्रॉम माय साइड। एटलीस्ट आपको अपना स्वीट स्पॉट पता होना चाहिए। जैसे मैं नहीं बोल रहा सबको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं मेरी तरह, बट कुछ लोग 95 भी करते हैं, कुछ लोग 100 भी करते हैं, कुछ लोग 90 भी करते हैं, कुछ लोग 75 भी करते हैं। तो दैट इज़ अप टू यू। यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट सीरीज़ दैट यू आर गिविंग कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है और किसके बियॉन्ड आपका नेगेटिव में जा रहा है। सो दैट इज़ अनदर एरिया, ठीक है? कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, सर तैयारी जिस दिन से आप थे उस दिन एग्जाम तक हर नोट्स और बुक कितनी बार रिवाइज किए थे? हाँ, तो मैं ये बता रहा था देखो, एक तो आपकी पहली रीडिंग होती है जिसमें आप कुछ भी रिवाइज नहीं करते हो, है ना? बिकॉज़ अभी वो टाइम नहीं है। दीज़ थिंग्स टेक प्लेस बिफोर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दिसंबर से पहले की बातें हैं। तो जब आप बेसिकली एक बार एक बुक को पढ़ते हो, नेक्स्ट जो आपकी रीडिंग होती है वो आपका रिवीजन होता है। तो वो दैट इज़ योर फर्स्ट रिवीजन। तो ये ऐसे करते-करते 3 रिवीजन्स आपको मारने होते हैं बिफोर ड्यूरिंग दिस प्रीलिम्स एंड अ, जनवरी वाला जो टाइम होता है 5 साढ़े 5 या 4 महीने का जो टाइम है, 3 रिविजन्स मिनिमम, उसमें आपको रिवाइज़ करते रहना है। और रिवाइज़ भी आप या तो बोल-बोल, जैसे मैं बोल-बोल के रिवाइज़ करता हूँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप लिख के रिवाइज़ कर सकते हैं, आप सिर्फ़ पढ़ के रिवाइज़ कर सकते हैं। व्हाटएवर देयर इज़, रिविज़न इज़ द मेन की। रिविज़न मतलब आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जानी चाहिए बिकॉज़ बिलीव इट और नॉट, अल्टीमेटली एग्ज़ाम कोई बहुत बड़े जीनियस का एग्ज़ाम नहीं है।
प्रीलिम्स तो एटलीस्ट ऐसा एग्ज़ाम है कि आपको रिटेंशन कितना स्ट्रॉन्ग है। कई जगह एनालिटिक्स काम आते हैं, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी काम आती है, वो तो फॉरमोस्ट है। कंसेप्ट्स को समझना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखना तो बेयर मिनिमम है, जो आपको करना ही करना है। जहाँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, यूट्यूब पे अनगिनत वीडियो हैं, उस कंसेप्ट को आप समझ सकते हो, एआई की मदद ले सकते हो। बट देन यू आल्सो हैव टू रिमेंबर, यू आल्सो हैव टू मग इट अप। लॉजिकल रीज़निंग से एग्ज़ाम निकलता है, बिल्कुल निकलता है, लेकिन बियॉन्ड अ सर्टेन क्वेश्चन निकलता है। 35-40 क्वेश्चंस में तो आपका रिटेंशन और आपको जो इतना याद है, जितना मक्ड अप है, वो चीज़ काम आती है। तो मल्टीपल रिवीजन जब आप करेंगे तभी ये चीज़ फ़ायदा है। आज मैंने सारे कॉन्स्टिट्यूशन के 25 पार्ट्स पढ़ लिए और कल मुझे याद नहीं है, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैं इस एग्ज़ाम को रिप्लिकेट नहीं कर सकता। और जो भी चीज़ मेंस में भी यही चीज़ है कि एनीथिंग व्हिच इज़ नॉट रिवाइज़ेबल ना, वो आपके किसी काम की चीज़ नहीं है। जो चीज़ को आप रिवाइज़ कर सकते हो, पेपर पे प्रोड्यूस कर सकते हो, वही चीज़ बेनिफिशियल है। अदरवाइज़ थिंग्स आर नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। सो वो चीज़ का एक और चीज़ ध्यान रखना कि रिविज़न अच्छे से करना है। Sir, PYQ, reverse engineering and MCQ aptitude without which this exam won't be cracked. Please tell about this. Yes, बिल्कुल सही बात है। देखो PYQs आपको थीम्स प्रोवाइड करते हैं। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि लाइक बिकॉज़ 2024 वाज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट और 2023 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन-सा कैमरून बेसिन का पार्ट है ना? नहीं, कोंगो बेसिन का पार्ट है। उसका आंसर कैमरून था, है ना? अगले साल फिर कोंगो बेसिन पे एक सवाल आया था कि कोंगो बेसिन आई थिंक 2024 में। तो थीम्स आर गेटिंग रिपीटेड एवरी डे, है ना? आप देखोगे विजयनगर के क्वेश्चन हर बारी आ रहे हैं। संगम लिटरेचर के क्वेश्चन 23-24 दोनों में आया है, ठीक है? और अगर आप बात बुद्धिज़्म, जैनिज़्म इन ऐसे सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। इंडियन फिलॉसफी हो गई, हिंदू फिलॉसफी हो गई, इन सब पे सवाल लगातार बन रहे हैं। उसके अलावा वन्स यू गो इनटू इकोनॉमी, इकोनॉमी में एक्सटर्नल इकोनॉमी, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इस बार तो सवाल मैथमेटिक्स करके पूछ लिया था कि ट्रेड अकाउंट डेफिसिट निकालो और क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ये सारी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के थिंग्स हैं, जो पीवाईक्यूज़ हैं, ये सब आपको हेल्प करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग जैसा इन्होंने बताया, करने में कि आप इन चीज़ों से आइडिया लगा सकते हो कि यूपीएससी क्या सवाल पूछ रहा है। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटी में इस समय गवर्नर्स का इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, 16 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया है, एसआईआर आया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यूपीएससी ने इलेक्शंस पे जैसे सवाल पूछा है, तो एसआईआर पे सवाल पूछा जा सकता है। यूपीएससी ने जैसे गवर्नर पे सवाल पूछा है, तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का सवाल पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए। पीवाईक्यूज़ में ये सब चीज़ें ऑलरेडी प्रेज़ेंट होती हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इश्यूज़ लाइक आईआर, प्लेसेस इन न्यूज़ हमेशा क्वेश्चन में आएगा। तो इस बारी जो ईरान में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ के जो प्लेसेस हैं, नटान्स हो गया, इस्फ़हान हो गया, बुशहर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और इसमें क्या चल रहा है, जैसे बुशहर में रशिया का इकलौता सिविल न्यूक्लियर प्लांट है, जो ईरान में ऑपरेट करता है। तो ये सारी चीज़ें यू शुड बी फ़ैमिलियर विथ। प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में आपको बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए और ये यूपीएससी ही बताता है कि भाई मैं इस पे सवाल पूछ रहा हूँ। पिछली बार वो कोकोआ के सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ पे सवाल पूछ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोकोआ के इंडिया की पोज़ीशन क्या है। इंडिया का हाईएस्ट ग्रोइंग स्टेट कोकोआ के टर्म्स में कौन-सा है, ठीक है? बाकी जो चीज़ें हैं, जो फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़ में रही हैं, रेयर अर्थ न्यूज़ में रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, गोल्ड न्यूज़ में था, कौन-सा कंट्री सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करता है, किसमें सबसे ज़्यादा रिज़र्व्स हैं, ऑयल रिज़र्व्स पे सवाल आ सकता है। इंडिया कितने नंबर पे है, कितना परसेंटेज ऑफ अराउंड स्पेसिफिक वो इम्पोर्ट करता है, एलएनजी पे, एलपीजी पे इम्पोर्ट डिपेंडेंस हमारी कौन से गल्फ नेशंस पे ज़्यादा है। तो दीज़ आर द थिंग्स दैट जो पीवाईक्यूज़ ही आपको बताते हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज़ को स्टडी करना। सर टेस्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, मैक्सिमम 3 आवर्स, दिस इज़ माय वीकनेस प्लीज़। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही। देखो, इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं हो सकता बिकॉज़ दैट इज़ अ फैक्ट, आपने सही बताया। देखिए, एक्सप्लेनेशन को हमेशा ऐसे पढ़ना है कि जो एरियाज़ हमें आते हैं उसे हमें स्किप करना है ना? अब जैसे कुछ एरिया मुझे आता ही है, मुझे पता ही है भाई, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंपल सा क्वेश्चन यूपीएससी ने 24 में पूछा था कि राइट टू प्रिवेसी किस आर्टिकल में आता है। अब आर्टिकल 21 है, उसके अंदर 5-6 आर्टिकल और हैं, हो सकता है 10-12 आर्टिकल्स हों, इंट्रिंसिक आर्टिकल है भाई, इतने सारे आर्टिकल्स दे रखे हैं। तो उनको मैं बस रीड करूँगा, मैं उनको लिखूँगा नहीं या वो सब नहीं करूँगा। और एक बार हो सकता है कि उसको रिवाइज़ कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा। तो 3 घंटा भी अगर आपको लग रहा है, लेकिन उसमें अगर आपका एक रिवीजन हो रहा है, तो आई थिंक दैट इज़ वेरी प्रोडक्टिव। मैं जैसे मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी, मैं संडे को टेस्ट देता था, जो फुल लेंथ टेस्ट है, और उस टेस्ट को तब रिवाइज़ करता था। दूसरा टेस्ट भी उसी दिन देता था, उस टेस्ट को भी रिवाइज़ करता था। तो हो सकता है 5, साढ़े 5, 6 घंटा भी लगता हो और टेस्ट देने के बाद तो 9 घंटा भी लगता हो। बट वो 2 टेस्ट जो मेरे रिवाइज़ हो जाते थे ना उस टाइम पे, तो फिर मैं उस चीज़ को आपको भूलना नहीं है। वही मैं चीज़ बता रहा हूँ, इफेक्टिव रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। जैसे कल मैंने वो टेस्ट दिया और उसमें जो मैंने पढ़ा, वो चीज़ मेरे को रिवाइज़ करनी है और वो चीज़ मेरे को रिविज़िबल रह जाए। एक चीज़ होता है कि मुझे ये पता है कि मेरे को रिवाइज़ नहीं रहेगी यार, 2 महीने बाद मैं कैसे याद रखूँगा? उस चीज़ को आपको लिख लेना है। एक्जिस्टिंग नोट्स में मैंने लिख लिया। सवाल आया कि जैसे इस बारी क्या बोलते हैं, मैं बता रहा था ईरान वाली जो प्लेसेस हैं, अब मेरे को ये याद हो गई हैं, तो मेरे को ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे को याद नहीं हो रही, मुझे लगता है मैं भूल जाऊँगा, आई विल जस्ट राइट इट डाउन। ये 3 घंटा पहले टेस्ट में लगेगा, उसके बाद ढाई लगेगा, उसके बाद 2 लगेगा और इवेंचुअली जब 30 दिन बचे होंगे, तो आप
1 घंटे में भी एक्सप्लेनेशंस को पढ़ के, लिख के, जो भी इम्पोर्टेंट है लिख लिया, जो भी इम्पोर्टेंट है हो गया। ये एफिशिएंसी के साथ आता है, टाइम के साथ आता है। अभी टाइम लग रहा है, आई अंडरस्टैंड इट, मुझे भी लगता है। अभी मैं भी पढ़ रहा हूँ प्रीलिम्स के लिए, मुझे भी टाइम लगता है। सो दीज़ थिंग्स दे आर समथिंग व्हिच विल कम नेचुरली। तो इस चीज़ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना, बट हाँ, ऐसा भी नहीं करना कि यार 3 घंटे लग रहे हैं तो छोड़ ही देता हूँ एक्सप्लेनेशन पढ़ना, ये फ्रूटफुल नहीं है। फ्रूटफुल है, बिल्कुल है, मॉक टेस्ट का यूज़ ही यही है। एक तो अपनी रेंज पता करना और दूसरा ये जो नए सवाल हैं, स्पेशली करंट अफेयर्स। देखो स्टैटिक नहीं आता तो पता चल जाता है कि यार ठीक है, स्टैटिक का सवाल बहुत मुश्किल है, कहाँ पे है, मैं लिख ही सकता हूँ, मेरे सोर्सेज़ में भी नहीं है तो ठीक है। दिस इज़ समथिंग न्यू, आई एक्सेप्ट माय फॉल्ट, मैंने लिख लिया। बट करंट अफेयर्स के जो सवाल हैं, क्या पता कुछ रिपीट हो जाए न्यू एग्ज़ाम में, क्या पता कुछ ऐसा हो जाए जिसको आपको एलिमिनेट करने में मदद मिल जाए। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो कभी भी मॉक टेस्ट से नहीं छोड़ने हैं, बिकॉज़ वहाँ पे भी एक डेडिकेटेड टीम है जो बना रही है, तो उसको भी थोड़ा-सा क्रेडिट दे देते हैं ना। हुँ, और सर टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा गाइड कीजिए। टाइम मैनेजमेंट ऐज़ इन मतलब कितने घंटे पढ़ना है? देखिए, घंटे के हिसाब से आप कभी ना, मेरे हिसाब से ना पढ़िए और ना पढ़ना चाहिए। आपको इफेक्टिव लर्निंग के बेसिस पे पढ़ना है। आपको पढ़ना इस बेसिस पे है कि अ, जो भी आपकी आई मीन जो इफेक्टिव रिटेंशन की स्पीड है वो सही हो जाए, और बाकी बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी मैंने आज के टारगेट सेट किए हैं ना, मैं वो पढ़ पाऊँ। उसके बाद आप खुद देखोगे, अगर आज मैंने सेट किया कि मुझे पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स और प्रेसिडेंट और यूनियन गवर्नमेंट पूरा पढ़ना है, और अगले दिन मुझे पता चला कि मैं 4 टॉपिक बोले थे, मैं 3 ही पढ़ पाया, 1 नहीं पढ़ पाया। अगले दिन का टारगेट आप 1 कम ही रखोगे। आपको अपनी चीज़ पता चलती है। ऑफ़ कोर्स आपको अपनी लिमिट रीच करनी है, बट इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इसी के हिसाब से है कि आपको सब कुछ देखना है, और प्लीज़ डोंट कॉम्प्रोमाइज़ योर सोशल लाइफ ओवर दिस। दोस्तों से मिलो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, 1 घंटा डेडिकेटेडली कुछ एक्सरसाइज़, रनिंग वगैरह करो, नीचे जाके कुछ खेलो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? मतलब घर पे बैठे रहना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। ऑफ़ कोर्स मेंस के टाइम पे एक अलग गाइडेंस होता है, एक अलग एटमॉस्फेयर होता है, तब ठीक है, थोड़ा बहुत आप रह सकते हो, बट अभी इतना ज़्यादा चिल एटमॉस्फेयर रखना है, अपने आप को इतना ज़्यादा टेंस नहीं रखना है कि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और ये सब है, तो वही। जीएस 1, 2, 3 के कितने पेजेज़ के नोट्स बनाए थे सर, और रिवीजन के बाद? हाँ, अब मेंस पे आ जाता है, तो मेंस की गाइडेंस के लिए अगर हम देखें तो आई थिंक दिस वाज़ माय फर्स्ट मेंस। तो माय मेंस प्रिपरेशन बट स्टार्टेड नॉट दिस टाइम, इट स्टार्टेड व्हेन आई फ्लर्टेड इन प्रीलिम्स इन 2024। तो 2024 के जो जून से लेकर के दिसंबर का टाइम था, आई डेडिकेटेडली गिव टुवर्ड्स मेंस ओनली। वो मैंने मेंस को ही दिया, और मेंस में इंक्लूडिंग ऑप्शनल को दिया, ठीक है? उसमें मैंने टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन की मेंस की, और ऑप्शनल की भी टेस्ट सीरीज़ जॉइन की। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप ऑलरेडी उस रेस में आगे रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सम ऑफ यू हू आर अपीयरिंग दिस ईयर इन 2026 माइट नॉट बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर मेंस, और कुछ लोगों का देखना आप, प्रीलिम्स होगा और मेंस में उन्हें कुछ नहीं आता होगा। वो हम में से ही होंगे जिनका प्रीलिम्स क्लियर होगा। एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ दैट कि हमारी जो कोचिंग इंडस्ट्री है, वो कोचिंग इंडस्ट्री भी और मेंटरशिप भी लार्जली डिपेंडेंट प्रीलिम्स पे है, कि सबका प्रीलिम्स क्रैक कराना है। बाकी तो मेंस वाले तो वही बच्चे होंगे जो रिपीटर्स होंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, नए बच्चे बहुत कम निकालते हैं। दैट इज़ अ फैक्ट। अब देखोगे कि मैक्सिमम जो लोग एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, उनका दूसरा, तीसरा मेंस था। एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि पहले मेंस में किसी को पता ही नहीं होता है कि ढंग से क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। उसका रीज़न ये है कि मेंस ऐसी चीज़ है जो प्रीलिम्स के बाद नहीं की जा सकती है। मतलब ऐसे होंगे बच्चे जो बोलेंगे कि प्रीलिम्स के बाद मैंने सर मेंस का पढ़ाया और मैं क्रैक कर गया एग्ज़ामिनेशन को। बट ये चीज़ प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल काम है। उसका रीज़न ये है कि 3 महीने मिलते हैं। अब उस 3 महीने में आप नोट्स बनाओगे कि आप क्या करोगे? तो आई ऑलवेज़ सजेस्ट कि जब भी आप प्रीलिम्स दे रहे हो, मेक श्योर यू आर मेंस रेडी। बिकॉज़ प्रीलिम्स हो भी जाएगा और फिर मेंस नहीं होगा तो उसका कोई यूटिलिटी नहीं है, बिकॉज़ मेंस इज़ द वन दैट विल गेट यू थ्रू दिस एग्ज़ामिनेशन। ठीक है? बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजीज़ की। तो बिल्कुल वन पेजर नोट्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एंड दैट इज़ द एरिया कि मैंने 2024 में जैसा आपको बताया, जून से लेकर दिसंबर आई प्रिपेयर्ड कॉम्प्रिहेंसिवली वन पेजर नोट्स, जिसमें मैंने टॉपिक वाइज़ नोट्स बनाए हैं, सिलेबस वाइज़, ठीक है? उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अर्बनाइज़ेशन का टॉपिक है, तो आपको कमिटीज़ पता होनी चाहिए, आपको डेफिनिशन पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि अर्बन स्क्रॉलिंग क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली एनसीआर में इश्यूज़ क्या हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि 73rd, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों आया और अर्बनाइज़ेशन से उसका कैसे लिंकेज है। आपको ये पता होना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट कैसे अर्बनाइज़ेशन से हो रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक अर्बनाइज़ेशन के बारे में क्या कह रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में ऐसे कितनी इंस्टीट्यूशंस हैं जो अर्बनाइज़ेशन के ऊपर काम कर रही हैं। तो ये एक वर्ड के ऊपर आपका रिसर्च होता है। ऑफ़ कोर्स फिर उसके बाद चैलेंजेस आएँगे, सॉल्यूशंस आएँगे, रिपोर्ट्स आएँगी, कमिटीज़ आएँगी, सजेशंस आएँगे, रिकमेंडेशंस आएँगी, है ना? तो नॉन और एनजीओज़ भी जो अर्बनाइज़ेशन के बारे में काम कर रहे हैं, क्या हज़ार्ड्स हैं इस चीज़ के, वो सब पता होना चाहिए। तो एक पेज और नोट्स के बारे में आपको ये सब होना चाहिए, और वही अगेन कि एक पेज और नोट्स इसलिए बनाना ज़रूरी है क्योंकि आपको रिविज़न करना है।
GS2 और GS4 तो स्पेशली आपको रिवीजन करना है। 2 घंटे में बैठ के आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज़ करना है। तो उस बेसिस पे आपको 1 पेज नोट्स बनाने पड़ेंगे। टॉपिक वाइज़ बनेंगे, अलग-अलग सोर्सेज़ से बनेंगे, टाइम लगता है, अलग-अलग सोर्सेज़ बनेंगे, टॉपर्स कॉपीज़ आप रेफ़र कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे नोट्स बनाए थे, और ऑफ कोर्स आप इंस्टीट्यूट्स का मटीरियल भी रेफ़र कर सकते हैं। आई टूक संकल्प मेंस बैच ऑफ टारगेट यूपीएससी, जिससे मैंने प्रिपेयर किया था। कोई भी एमएमपी, सारथी का बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। मेंस के डेडिकेटेड कोर्सेज़ वो चलाते हैं लोग, सो व्हाटएवर सूट्स यू। कितने पेज में हो जाना, देखिए पेजेज़ वाइज़ आप मत जाइए, किसी के 100 पेजेज़ होते हैं, किसी के 500 भी होते हैं, किसी के 400 भी होते हैं। तो राइटिंग पे भी डिपेंड करता है, स्पेस पे डिपेंड करता है। देखिए मैं बस ये बताऊँगा कि एनीथिंग व्हिच इज़ रिवाइज़ेबल, चाहे 500 पेज हो, अगर आप 500 के 500 पेज उस 2 घंटे में बिटवीन जीएस1 एंड जीएस2 के ब्रेक में रिवाइज़ कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड। कुछ लोग करते हैं, क्योंकि नोट्स को कंसोलिडेट करने के लिए फिर से आपको लगेगा। जब मैंने पहली बार नोट्स बनाए थे, तो मेरे पास 600-700 पेजेज़ के थे। तो उनको मैंने फिर कंसोलिडेट करने के लिए मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था। तो व्हाट आई डिड सिंपली वाज़ कि मैंने जो-जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं लगी उनको काटता गया, या उनको लास्ट मोमेंट के लिए नहीं रखा कि ये वर्ड पढ़ना है, ये वर्ड पढ़ना है, क्योंकि लास्ट में आपको वर्ड्स पढ़ने हैं, कीवर्ड्स लिखने हैं और कीवर्ड्स पढ़ने हैं। पूरा-पूरा सेंटेंस तो आप रिवाइज़ कर ही नहीं पाओगे उन 2 घंटों में ना। तो उन-उन चीज़ों को काटते रहिए, छोटा करते रहिए, वहीं पे कुछ ना कुछ लिखते रहिए। अगर आपके नोट्स बल्की भी हैं, 400-500 पेज के हैं, क्योंकि अभी टाइम नोट्स कंसोलिडेशन का नहीं है। अभी काम ये है कि जितने बन गए हैं वेल एंड गुड है, अभी प्रीलिम्स के लिए पढ़ने का टाइम है। फिर बाद में यू कैन 3 मंथ्स जब मिलेंगे तो रिवाइज़ करते-करते यू कैन शॉर्टन अप योर नोट्स। तो पूछा सर व्हाट अबाउट साइंस एंड टेक? देखिए साइंस एंड टेक के लिए सबसे बेसिक मैंने, क्योंकि मैंने वाजीराम से फाउंडेशन किया है, तो मैंने जो स्टार्टिंग के कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो मेरी साइंस एंड टेक है, वो वही नोट्स है वाजीराम के। अगर आपको मार्केट से मिले आप ले सकते हैं, अच्छे नोट्स हैं। विजन के हैं, काफ़ी लोगों के हैं। बुक्स मुझे ज़्यादा पता नहीं है साइंस एंड टेक की, बिकॉज़ मेरा बैकग्राउंड साइंस का था टिल क्लास 12, तो मुझे इतनी ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आए इससे, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन होता क्या है? तब आप बताओगे कि यूरेनियम डाइऑक्साइड किसमें यूज़ होती है, तब आप बताओगे कि मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर्स क्या हैं, पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। सिमिलरली फॉर एनवायरनमेंट आपको पता होना चाहिए कि नीश क्या होता है, उसके बाद आप आगे जाओगे कि आप बोलोगे हैबिटेट क्या होता है, अलग-अलग चीज़ें क्या होती हैं। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो आपको नोट से लेना पड़ेगा या फिर आपको क्लासेस से लेना पड़ेगा। अभी तो क्लासेस का टाइम है नहीं, क्योंकि 26 का अटेम्प्ट हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप सीधा नोट्स उठाओ, ठीक है? मार्केट में जाके किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स उठाओ और आपने उसके कर लो। उसके बाद जब कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर हो गई, क्योंकि क्वेश्चन इस पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी का 1 या 2 आता है। फॉर एग्जांपल वी आर सीइंग डेफिनिशन बेस्ड क्वेश्चन्स। एक आया था आई थिंक एरो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द एंटायर कुछ बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो डेफिनिशन बेस्ड क्वेश्चन था। ऐसे भी सवाल आते हैं, लेकिन जनरली आपको ऐसे सवाल आएँगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है? ये कहाँ का यूज़ होता है? अमोनिया किन-किन प्लांट्स में यूज़ होता है? अमोनिया का प्रोसेस क्या है? क्या एंड प्रोडक्ट्स है? क्या बाय प्रोडक्ट्स हैं? तो वो डायनामिक पोर्शन है और उसके लिए करंट अफेयर्स करना ज़रूरी है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुई, फिर आपने करंट अफेयर्स उठा लिए। चाहे मुदित जैन सर के नोट्स कर लो, चाहे किसी के भी कर लो करंट अफेयर्स से। तो ऐसे प्रीलिम्स के लिए तो ऐसे ही होगा। मेंस के लिए अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़ से होगा कि टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे है, कब बनी, कैसे बनी, क्या न्यूज़ में चल रहा है, इंडिया के एस्पिरेशंस क्या हैं, इंडिया का टारगेट 2035 में जो भारत अंतरिक्ष वो उसका है, वो कैसे है, ठीक है? शुक्रयान का हमारा मिशन कब है? अभी 2 मिशन्स पीसी आई थिंक पीएसएलवी सी-62 के फेल हुए हैं 2 मिशन्स, वो मिशन्स कौन से थे? कौन-सा पार्ट खराब हुआ? कैसे वो है? सो दीज़ आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स और सब करना है। स्पेस टेक भी करना है, ठीक है? उसके अलावा नैनो टेक भी करना है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी करना है, बायोलॉजी भी करना है, मेडिकल साइंस वाले जो डिस्रप्शंस है वो भी करना है। तो सब साइंस एंड टेक में कंप्लीट एआई भी करना है, रोबोटिक्स भी करना है, सब कुछ करना है। छोड़ना कुछ भी नहीं है साइंस एंड टेक में। वही बस लेकिन बस करंट डेवलपमेंट्स करके जाओगे बहुत है। हुँ। सर मेरा ऑप्शनल पीएसआईआर था। मैथ्स वीक है देखिए मैथ्स वीक है तो फिर क्लासेस ही लेनी पड़ेंगी। अगर आप क्लासेस यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स मिल जाएँगे, उसके लिए आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज़ है जो आप पढ़ के नहीं समझ सकते। तो या तो आप डेडिकेटेड सीसैट का कोर्स जॉइन कर लीजिए, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन यूट्यूब पे भी आपको फ्री लेक्चर्स मिल जाएँगे, काफ़ी अच्छे फ्री लेक्चर्स हैं, जो टॉपिक वाइज़ आपको करने हैं। 2-4 टॉपिक्स उसके अच्छे से करके जाओ, जैसे नंबर सिस्टम, पीएनसी, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ये सब एंड हो जाएगा। या पीडब्ल्यू कोचिंग के बारे में आई डोंट हैव एनी आइडिया लेकिन वही है कि ऋषभ सर वहाँ पे अच्छे हैं जो सीसैट पढ़ाते हैं और उनके जो टॉप 100 क्वेश्चंस आते हैं ना लास्ट में वो एक बारी देख लेना। मैंने पिछली बार देखे थे, एक सवाल हिट हो गया था मजोराना वाला जो माइक्रोसॉफ्ट की चिप वाला सवाल था। तो वो उन्होंने टॉप 100 क्वेश्चंस आते हैं कि दीज़ आर द टॉप 100 क्वेश्चंस, देख सकते हो उसको। उनके लास्ट में लेक्चर्स यूट्यूब पे आते हैं। हिंदी मीडियम के करंट अफेयर्स मुझे आइडिया नहीं है, आई एम सो सॉरी। सो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा किसी और को।
2028 टारगेट करना है, तो अभी तो आप बहुत ही यंग फेज़ में हैं। अभी तो आप बस ये है कि बेसिक सोर्सेज़ से स्टार्ट कीजिए, लक्ष्मीकांत या हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम उठाइए, उनकी एक रीडिंग लगाइए, पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर साइड बाय साइड पढ़ते रहिए और जो भी डाउट्स हैं उसे किसी न किसी मीडियम के थ्रू आप करते रहिए। आई मीन अभी तो बस स्टार्ट है, तो पढ़ते रहिए और इवेंचुअली आंसर राइटिंग वगैरह सब लास्ट में आ जाएगा। डेली के 5 पीवाईक्यूज़ देखते रहिए और हो जाएगा। मतलब प्रीलिम्स क्वेश्चंस देखते रहिए। सर वन टाइम रिवीजन हुआ है अभी इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर बचा हुआ है एंड आई एम फीलिंग सो डिप्रेस्ड। देखिए डिप्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं करना है ना? अब बचा हुआ है तो बचा तो रहेगा ही जब तक हम करेंगे नहीं। लेकिन फिर भी काफ़ी हो गया है फर्स्ट टाइम रिवीजन, है ना? और इकोनॉमी, पॉलिटी तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्टार्टिंग में रिवाइज़ करनी चाहिए। बिकॉज़ आप देखेंगे कि प्रीलिम्स जिनका भी निकल रहा है ना, उनके 2 एरियाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक पॉलिटी और एक इकोनॉमी। ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाई वेटेज कैरी करते हैं और इनको अगर आप गलत करके आते हो ना, तो आपका प्रीलिम्स हो सकता है ना हो। इस बार हो सकता था बिकॉज़ इस बार हिस्ट्री बहुत आसान आ गया था। नहीं तो यूजुअली आप देखोगे कि ये दोनों कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर सवाल होते हैं और दूसरा इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा मुश्किलें लोगों को नहीं आती हैं। पॉलिटी में 80% 90% क्वेश्चन लोग सही करते हैं, इकोनॉमी में भी सेम ट्रेंड देखने को मिला है बिकॉज़ सवाल जो है वो एनालिटिकल ज़रूर है लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर किसी की क्लियर है, किसी को एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन समझ में आता है, किसी को नीर, रीर समझ में आता है, तो वो सवाल कर सकता है। तो इन चीज़ों की तो रिवीजन सबसे पहले कीजिए, क्योंकि यही सवाल टेस्ट सीरीज़ में भी सबसे अच्छा होंगे और जब देखेंगे आप ट्रेंड, जब आपका इकोनॉमी और पॉलिटी स्ट्रॉन्ग होगा ना, तब आपके मार्क्स कम से कम 80 हिट करेगा, 80 से नीचे कभी नहीं जाएगा और जब 80 हिट कर गया तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स करके आपके 100 आराम से हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखिए और रिवीजन अभी 60 दिन बचे हैं, 60 दिन में आप कम से कम 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। एफिशिएंसी थोड़ी-सी बढ़ा दीजिए, 30-30 दिन के 2 रिवीजन्स और हो जाएगा। सर डू वी हैव टू रीड लक्ष्मीकांत लाइन टू लाइन? देखिए पहली रीडिंग में तो कोशिश कीजिए लाइन टू लाइन पढ़ें, बट अब पहली रीडिंग का टाइम ही नहीं है। अब तो आपने जो हाइलाइट किया है या जो आपने पढ़ा है, जैसे मैंने चैप्टर वाइज़ नोट्स बना रखे थे लक्ष्मीकांत के अपने नोटबुक में ही, तो मैं बस वही करता था। मैंने उसके बाद बुक भी खोल के नहीं देखी, क्योंकि मैंने एक बार पढ़ी, उसके बाद सेकंड टाइम व्हेन आई रिवाइज़्ड मैंने वहीं पे नोट्स बना लिए, हैंड रिटन नोट्स अपनी नोटबुक में, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोचिंग नोट्स बना रखे थे, वहीं पे आई केप्ट ऑन एडिंग देम और वहीं से हो गया था। तो लाइन टू लाइन एक बार तो रीड करनी चाहिए, लेकिन अभी उस रीडिंग का टाइम नहीं है। टेस्ट सीरीज़ फॉर प्रीलिम्स कोई भी टेस्ट सीरीज़ व्हाटएवर, देखिए मेरा शेड्यूल जो टेस्ट सीरीज़ का रहता था वो मैं बताना भूल गया। मैंने वाजीराम का कैंप लिया था पिछले साल, तो उसमें क्या था कि जैसे 15 दिन डेडिकेटेडली एक सब्जेक्ट फ़ॉलो होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी 1 से जनवरी 15 वाज़ पॉलिटी। अब उसमें क्या था कि 5 सेक्शनल टेस्ट, 1 करंट अफेयर्स टेस्ट और 1 फुल लेंथ टेस्ट, 60 टेस्ट होते थे अल्टरनेटिव डेज़ पे। तो एक दिन मैं लगातार वही सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था उस सेक्शनल टेस्ट के। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले दिन टेस्ट है पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का, फंडामेंटल राइट्स का। तो पहले दिन मैं वही सब पढ़ रहा हूँ। उसका टेस्ट दिया, उसका 50 नंबर का टेस्ट हुआ, 50 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ। वो लिख के उसके नोट्स बनाए और कर लिया। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, अगले दिन जो सवाल होगा वो एडीएल पे होगा, गवर्नर पे होगा, स्टेट गवर्नमेंट पे होगा, ठीक है? उसके लिए पढ़ लिया एंड देन आई यूज्ड टू डू दैट। थर्ड दिन जुडिशरी पे सवाल आया। थर्ड दिन जुडिशरी का टेस्ट हुआ, तो जुडिशरी के लिए हाई कोर्ट, टेस्ट कोर्ट तो ऐसा हुआ। तो आप एक टेस्ट सीरीज़ तो ऐसी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपके पास रिवीजन टॉपिक वाइज़ होता रहे, उसका सेक्शनल दे दिया अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और उसके बाद आप आगे बढ़ते रहे। फिर 15 दिन के बाद करंट अफेयर्स का भी टेस्ट हो गया, फिर 15 दिन के बाद इकोनॉमी स्टार्ट हुआ। तो पहला रिवीजन 30th मार्च तक यही हो गया 6 सब्जेक्ट्स का। देन सेकेंडली फिर मैं अपना रिवीजन करा था 30 दिन अप्रैल तक एंड देन फाइनली उनके 10 मॉक टेस्ट थे। तो आप वाजीराम का कैंप्स ले सकते हैं इफ इट्स फिजिबल, या फिर ऐसे इंस्टीट्यूट्स की बहुत सारी हैं जो सेक्शनल के बाद फुल लेंथ लेते हैं, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। दैट विल आल्सो हेल्प यू। कितने मंथ की प्रेप एडिक्वेट है 12? देखिए प्रेप तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एवरी एस्पिरेंट चाहे वो अपने 5th या 6th अटेम्प्ट में भी हो, वो भी प्रिपरेशन करता रहता है। बट आप बेसिक फाउंडेशन क्लियर करने के लिए ऑफ कोर्स यू विल नीड अराउंड 10 मंथ्स का प्रिपरेशन टाइम तो चाहिए। बिकॉज़ आप उसमें मेंस के भी नोट्स बनाएँगे, आप उसमें प्रीलिम्स के भी नोट्स बनाएँगे और नोट्स नहीं बनाएँगे तो रिवाइज़ करेंगे और नोट्स उसके अलावा आपको ऑप्शनल के लिए भी अच्छा खासा टाइम चाहिए। कुछ ऑप्शनल्स बहुत लेंदी होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री ऑप्शनल है, मैथमेटिक्स है, उसमें अलग टाइम लगता है। बट हाँ, यही है कि इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। सर करंट विज़न 365 इज़ इम्पोर्टेंट। हाँ, देखिए कुछ दोस्त मेरे हैं जो थ्री पीटी 365 करते हैं, मेंस के लिए भी 365 करते हैं। सो व्हाटएवर इट इज़, यू शुड हैव अ सिंगल सोर्स। चाहे आप मुदित सर के नोट्स ले लीजिए, चाहे आप टारगेट 140 प्लस ले लीजिए, चाहे आप पीटी 365 ले लीजिए, चाहे आप शून्य का ले लीजिए। व्हाटएवर इट इज़, जस्ट वन सोर्स इज़ इनफ। एक सोर्स को पकड़िए, एक सोर्स के थ्रू रहिए और एक सोर्स को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। एक सोर्स मल्टीपल रिविजन्स, दैट इज़ द की। ठीक है? इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अदर सोर्सेज़, और ऐसा कभी-कभार होता है कि टेस्ट सीरीज़ में कोई सवाल आ गया और इससे पता चला कि हमारी टेस्ट सीरीज़ में तो था ही नहीं, मतलब हमारे सोर्स से आया नहीं है। डोंट फील डिसहार्टेंड, ठीक है भाई,
हो सकता है कि 50 चीज़ें हों जो तुम्हारी टेस्ट सीरीज़ से आई हों, एक नहीं भी आई तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। हमें अपने सोर्स पे स्टिक रहना है, हमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अपने सोर्स में ऐड कर लेनी है। व्हाटएवर सोर्स यू हैव पिक्ड, नो सोर्स इज़ बैड, नो सोर्स इज़ रॉन्ग, इट्स जस्ट दैट कभी-कभार वो हिट नहीं कर पाते हैं एंड देयरफॉर योर रोल कम्स इनटू द पिक्चर कि आप उस चीज़ में वो ऐड कर दें। अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम निकालना है, पीछे-पीछे किसी इंस्टीट्यूट या कोचिंग के नहीं भागना है। सो करंट अफेयर्स क्रिएट हैवक इन माइंड, डू वी हैव टू मेक देम? देखिए, नोट्स के नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे पीटी 365 ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो उसके नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे? नोट्स का नोट्स नहीं बनाना है ना? सिमिलरली ऑन द ग्राउंड्स फॉर दिस ऑल्सो, जैसे संकल्प सॉरी टारगेट 140 प्लस भी माइक्रो नोट्स प्रोवाइड करता है। तो आप उस नोट्स का प्रिंट आउट निकलवाइए या फिर मतलब डिजिटल कॉपी रखिए, लेक्चर साइड बाय साइड लीजिए, कुछ समझ ना आए और उस नोट्स को आप बना लीजिए। नोट्स बनाने का टाइम इस समय नहीं है, इस समय रिवीजन का टाइम है, नोट्स बनाने वाला टाइम चला गया। सीए के नोट्स आप मत बनाइए आप, ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर को आप भी चाहें तो आप, अगर आप करंट अफ़ेयर्स का एक अच्छा सोर्स फ़ॉलो कर रहे हैं इस समय, आप उसे फ़ॉलो कीजिए, ठीक है? न्यूज़पेपर्स की एज़ सच अभी नीड इतनी ज़्यादा नहीं है। मेंस के टाइम पे फिर से नीड उठेगी, लेकिन करंट अफ़ेयर्स में जो कोचिंग है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 20,000 करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री है, तो वो अपना काम अच्छे से करते हैं और आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जस्ट ट्रस्ट देम, इट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से। कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए आइडियल? देखिए, आइडियल कोई मॉक टेस्ट नहीं होते। जैसे पिछली बार आई थिंक आई गिव मोर देन 60 इफ यू इंक्लूड सेक्शनल टेस्ट आल्सो, है ना? आपको आपकी रेंज चेक करनी है, जितने आपको अच्छे लगे। कम से कम एक संडे में 2 टेस्ट तो दे देने चाहिए, एक सीसैट और एक नॉर्मल। अगर तो 2 जीएस देने हैं तब भी ठीक है, क्योंकि सीसैट तो लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है। मैंने पिछली बार सीसैट के सिर्फ हार्डली 4 टेस्ट दिए थे बिकॉज़ आई वाज़ श्योर कि मतलब सीसैट मेरा बैरियर नहीं है। जीएस के मैंने जैसे बताया 60 दिए थे, सेक्शनल इंक्लूडिंग। इस बार मैं इतने देने की नहीं सोच रहा हूँ, तो दैट डिपेंड्स कि अगर आपको लगता है कि आपको और मॉक्स देने चाहिए तो दीजिए। अगर आपको लगता है स्कोर्स बहुत कम है तो दीजिए। अगर आपको लगता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मॉक्स ही मॉक्स दे रहे हैं और कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं। रिविज़न अल्टीमेटली इज़ द किंग, है ना? तो रिवाइज़ कर पाएँ और उसके बीच में मॉक्स दे पाएँ, इतने मॉक्स आइडियल हैं। आई थिंक 15 टू 20 मॉक्स तो आपको देने ही चाहिए, है ना? बिकॉज़ दैट ऑल्सो, और ऑफलाइन देने चाहिए। ऑनलाइन बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट नहीं, बिकॉज़ अल्टीमेटली एग्ज़ाम प्रेशर और वो सब फीलिंग्स जो हैं वो वहीं क्रिएट होती हैं। तो दैट शुड बी द थिंग, है ना? ऑप्शनल इज़ पीएसआईआर, सो सम टॉप्स आर सेइंग नोट्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रीलिम्स। देखिए अब देखिए, सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, तो आई कांट कमेंट ऑन देयर स्ट्रैटेजी। मेरे लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे और कोचिंग के नोट्स रियली हेल्प्ड मी एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट लाइंग। तो मेरे लिए बहुत हेल्प किया, हो सकता है उन लोगों के लिए ना किया हो। जैसा मैं बता रहा हूँ कि नोट्स जो हैं वो कभी-कभार खुद नहीं बनाते, बट प्रिंट आउट्स निकाल लेते हैं या डिजिटल कॉपीज़ में नोट्स होते हैं। तो व्हाटएवर आई थिंक शुड हेल्प देम। आपको अपना हिसाब से करना है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए, देखो टॉपर्स कुछ भी कहें, मैं कुछ भी कहूँ, वो मैटर नहीं करता। आपको एग्ज़ाम निकालना है। अगर आपको मेरी कोई अच्छी बात लग गई, उसे फ़ॉलो कीजिए, नहीं हो रहा है उसको हटाइए, किसी और की बात फ़ॉलो कीजिए। बट बात ये है कि ट्रायल एंड टेस्ट करने के बाद चीज़ों को एनालाइज़ कीजिए। ऐसे हवा-हवा में चीज़ें नहीं होती हैं। फर्स्ट यू फॉलो समथिंग एंड देन यू पिक आउट इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अगर वो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स नहीं फिट बैठ रहे हैं, देन यू स्विच ऑफ दैट थिंग एंड पुट ऑन समथिंग एल्स। दैट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। जैसा आपको ठीक लगे बाकी आप कीजिए। प्लीज़ पिक अप माय क्वेश्चन, व्हिच इज़ योर क्वेश्चन? सर, एआई जनरेटेड टेस्ट सीरीज़ से प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, एआई टेस्ट सीरीज़ आई हैव नॉट रियली टेकन एआई जनरेटेड टेस्ट माय सेल्फ, बट आई एम नॉट रियली श्योर बिकॉज़ आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन सच अ थिंग, बिकॉज़ मैंने खुद ही नहीं दिए हैं। तो ये तो आप उनसे पूछिए जो उन लोगों ने वो टेस्ट दिए हैं। तो आई एम सॉरी, आई वोंट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन बिकॉज़ मैंने कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ दिए हैं। 27 अटेम्प्ट टाइमलाइन। देखिए, टाइमलाइन देना अब थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, और टेलीग्राम पे भी मेरा चैनल है नहीं बिकॉज़ आई माय सेल्फ एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस अटेम्प्ट आल्सो। अंशुल 210, है ना? वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं बिकॉज़ टाइमलाइन देने के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा ये लेक्चर, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको यही करना है कि अभी बेसिक टाइमलाइन रिमेन्स द सेम, कि दिसंबर 31, 2026 तक आपका ऑप्शनल जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 रेडी होना चाहिए। टॉपिक वाइज़ नोट्स आपके प्रिपेयर होने चाहिए। अभी से मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, प्रीलिम्स के पीछे मत भागिए। ऑफ कोर्स पहली रीडिंग लगाइए लक्ष्मीकांत वगैरह की, बट टॉपिक वाइज़ मेंस के नोट्स बनाना शुरू करिए, जो सिलेबस में दे रखा है जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 एंड योर ऑप्शनल। दैट शुड बी कंप्लीटेड बाय 31st, और हो सके तो एक टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन कर लीजिएगा। ऑफ कोर्स सितंबर, अक्टूबर में इतना जल्दी नहीं, अगस्त तक नहीं। अभी तो कंटेंट, कंटेंट, कंटेंट जुट जाइए नोट्स बनाने में, वन पेजेस बनाने में मेंस के लिए। प्रीलिम्स की तैयारी यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 1। अभी प्रीलिम्स की तैयारी मत करना, अभी बस कांसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर जाना। बाकी आप देख लेना। सर, एक्चुअली थिंकिंग स्पीड इज़ लेस देन राइटिंग स्पीड, इज़ इट इज़ डिलेमा? देखिए, थिंकिंग स्पीड जो है ना, वो स्पीड नहीं है, वो चीज़ बस वो है कि पहले जो हिट कर जाती है। मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक चीज़ होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग।
ब्रेनस्टॉर्मिंग जिस बंदे ने नहीं करनी सीखी, वो एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकता है। तो ब्रेनस्टॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको सारा कंटेंट आता हो, चाहे आपको सब देखिए प्रीलिम्स के लिए ऐसा है कि आपको रिटेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, आपको पिन पॉइंट आंसर्स मार्क करने हैं, बट मेन्स इज़ ऑल अबाउट योर थिंकिंग ऑल्सो। ऑफ कोर्स एक आंसर है जिसको बारे में आपको पता होना चाहिए, बट ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 सेकंड में सोच के आंसर को फ्रेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में। तो अपनी थिंकिंग की स्पीड मैं नहीं कह रहा बढ़ाइए, बट थिंकिंग के डायमेंशंस बढ़ाइए। अगर आप कोई इश्यू को सोशली सोच रहे हैं, तो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली भी सोचना शुरू कीजिए। एग्ज़ाम में बैठे-बैठे आंसर लिखने से बियॉन्ड और बेटर होता है कि आप जिस चीज़ को सोच रहे हैं, वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। राइटिंग स्पीड तो कैन बी इम्प्रूव्ड, बट थिंकिंग हैव टू स्टार्ट होलिस्टिकली एंड राइट नाउ। अभी से थिंकिंग स्ट्रांग होगी, किसी इश्यू पे आप बोल के देखिए कि 1 मिनट में, 2 मिनट में बोल पा रहा हूँ कि नहीं बोल पा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इश्यू है ईरान और अमेरिका का जो अभी वॉर चल रहा है, गल्फ वॉर जो चल रहा है, उसके बारे में मुझे कितना पता है? क्या उसके इश्यूज़ हैं? क्या उसमें एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं, किस वजह से वो वॉर हो रहा है, कौन वो वॉर जीतने की कगार पे खड़ा हुआ है, क्या उस वॉर में और कुछ हो सकता है, उसके वॉर के इम्प्लीकेशंस इंडिया पे क्या हैं, सिर्फ़ एलपीजी एक इश्यू है या फिर और भी इसके बियॉन्ड है, क्या जियोपॉलिटिक्स या जियोस्ट्रैटेजिक्स इसको डिनोमिनेट कर रहा है, तो इस इश्यूज़ पे अपनी राय बनाना शुरू कीजिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू थिंक दैट। Also haven't started optional yet, had PSR in grad but syllabus is lengthy, so thinking about sociology। देखिए ऑप्शनल के बारे में तो सोच लीजिए अगर आप 2026 के अटेम्प्ट दे रहे हैं तो, बिकॉज़ 3 महीने में मेंस ही तैयार नहीं हो सकता तो ऑप्शनल कैसे तैयार हो जाएगा। तो सोच लीजिए अच्छे से, अभी बहुत टाइम है, 2-4 लेक्चर्स देख लीजिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं, सिलेबस दोनों का अच्छे से पढ़ लीजिए। टॉपर मार्क्स बिल्कुल मत देखना, अपना जो इंटरेस्ट है, सिलेबस है, उसके बेसिस पे ऑप्शनल से तैयारी करना। सो ये वेरी हम्बल, मेरे मोहल्ले में एक की रैंक आई है, सीधे इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। स्ट्रैटेजी फॉर हिस्ट्री प्लीज़ सर, देखिए हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी इफ यू आर आस्किंग फ्रॉम जीएस मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो हिस्ट्री में आपको ये करना है सोर्सेज़ लिमिटेड रखने हैं, ठीक है? मैक्सिमम जो आपको करना है वो आपको ये करना है कि मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम और एक तमिलनाडु एनसीईआरटी और एक आपके पास 11th और 12th की ओल्ड एनसीईआरटीज़, ठीक है? इसके बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन जनरली नहीं बनते हैं। मेंस में जब हिस्ट्री की बात आती है तो हिस्ट्री सब्जेक्ट ऑल्दो मॉडर्न हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम की हिस्ट्री है। तो वो एक लिमिटेड कॉम्पैक्ट हो जाती है। उन्हें जैसे गांधी मूवमेंट्स आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा आपको 1857 के बाद के रिवोल्ट्स के बाद की हिस्ट्री याद होनी चाहिए। बट आर्ट एंड कल्चर वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट्स के एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन फॉर प्रीलिम्स आर्ट एंड कल्चर अगर आपको करना है, तो नितिन सिंघानिया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आई थिंक दैट इज़ टू बल्की बुक और अच्छी नहीं है। बट येस, इसके लिए फाइन आर्ट्स के एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चर के सवाल अच्छे खासे बनते हैं और बाकी आप इसको तैयार कर सकते हैं बाय सम सोर्सेज़ व्हिच आर देयर, लाइक कुछ सोर्सेज़ में दे रखा है कि आप एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे ना पुरानी वाली, तो उसमें आर्ट एंड कल्चर जैसे चोला एम्पायर के आर्ट एंड कल्चर के बारे में दे रखा है। ओल्ड मतलब ये तमिलनाडु एनसीईआरटीज़ में भी आर्ट एंड कल्चर के बारे में और उनके डांस फॉर्म्स के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में दे रखा है। तो ये चीज़ें हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग फॉर मेंस। और डेट, टाइमलाइन्स, किंग के नाम, इस बार आप देख रहे थे अकबर पे सवाल था, सिंक्रेटिज़्म पे, इस बार सवाल था आई थिंक कौन सा बुंदेलास पे सवाल था, है ना? तो उन सब पे सवाल था और उनकी टाइमलाइन्स आपको पता होनी चाहिए, इवन ड्यूरिंग योर एमएक क्वेश्चंस। सर अपने डिजिटल नोट्स बनाए हैंड रिटन, मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए, मैं डिजिटल को ज़्यादा फ़ॉलो नहीं करता हूँ। तो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं मानता हूँ कि डिजिटल नोट्स बनाना एक्चुअली में बहुत बहुत अच्छा काम है, अगर आप कर पा रहे हैं तो। बिकॉज़ वो नोट्स स्टेबल करते हैं, हमें तो नोट्स बहुत इकट्ठे करने पड़ते हैं, बट मेरी आदत स्टार्टिंग से हैंड रिटन नोट्स बनाने की है, तो मैंने हैंड रिटन बनाए थे। बिगिनर वर्किंग एस्पिरेंट हूँ, कंसिस्टेंटली 5-6 आवर्स नहीं हो पा रहा है एंड डबल ऑन वीकेंड्स, मिनिमम हाउ मच आवर्स, देखिए हाउ मच आवर्स का सवाल भूल जाइए, बहुत इर्रेलेवेंट सा सवाल है, बहुत क्लीशे सवाल है। आप अपना इफेक्टिव रिटेंशन रेट देखिए, एक दिन आप 8 घंटा पढ़िए, बस 1 दिन, और उसमें से देखिए मुझे याद कितनी देर हो रहा है। हो सकता है 7 घंटे का याद रहे, हो सकता है 6 घंटे का याद रहे, हो सकता है 4 घंटे का याद रहे। तो इसको इफेक्टिव लर्निंग बोलते हैं कि अगर मैं 8 घंटा पढ़ भी रहा हूँ, रीडिंग कर भी रहा हूँ, तो मुझे याद ही 4-5 घंटे का है। 4-5 घंटे का मतलब है कि टॉपिक जो मैंने 4 से 5वें घंटे में खत्म कर दिया था, मुझे बस वहीं का याद है, उसके आगे का टॉपिक मैं भूल रहा हूँ। या फिर हो सकता है रीसेंट वाला टॉपिक याद हो, उसके पहले का मैं भूल चुका हूँ। तो तब आपको पता चलेगा आपकी इफेक्टिव रिटेंशन अभी तक क्या है। उस इफेक्टिव रिटेंशन को बढ़ाना है। अगर आप 6 घंटे भी दिन में सिंसियरली पढ़ रहे हैं और 6 घंटे का आपको याद है, 100% एफिशिएंसी के साथ आप पढ़ रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ 5 घंटा भी अगर आप पढ़ेंगे तो अब बहुत है। बात वही है कि पूरे मन से पढ़ना, जब आप पढ़ रहे हो तब और कुछ मत करो, और जब आप पढ़ रहे हो तब और कुछ देखो मत। और उससे बेटर यही रहता है कि कभी-कभार मेरे को भी आलस आता था पढ़ के बोलने में, तो मैं तब लिख के राइट करता था। जब आप लिख रहे हो ना, तब आपका टेंशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जब आप बोल रहे हो या जब आप पढ़ने की एक्टिंग कर रहे हो। तो आप लिख के भी रिवाइज़ कर सकते हो।
सो स्पेक्ट्रम के नोट्स बनाए थे आपने, हाँ, सेकंड बिकॉज़ फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बनाए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट बिकॉज़ मैं अपीयरिंग में था, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन तब खत्म हुआ था, तो मैं नोट्स नहीं बना पाया था। बट सेकंड अटेम्प्ट में व्हेन आई वाज़ डूइंग दिस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ ना, तो मैंने अपने नोट्स के साथ स्पेक्ट्रम के नोट्स बनाए थे। अगेन आई वुड नॉट सजेस्ट यू, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप मत बनाइए, आप बुक से डायरेक्ट रीड कर सकते हैं। क्योंकि मैं बोल रहा था मुझे लिख के अच्छा रिवाइज़ होता है, तो मैंने इसलिए लिख लिया था। तो इस वजह से मैंने करा था। मतलब उसमें एंग्लो मराठा, एंग्लो वगैरह वॉर्स के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, लर्न करने के लिए स्पेक्ट्रम से। प्री एंड मेंस दोनों टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन आंसर कैसे इवैल्यूएट करने हैं? देखिए प्रीलिम्स की तो टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन की कोई इश्यू नहीं है। वो खुद ही एनालाइज़ करके दे देते हैं, है ना? सो दैट वोंट बी अ इश्यू। बट जो इश्यू है वो है मेंस में, है ना? प्रीलिम्स के लिए तो लास्ट में आप जाएँगे 10 टेस्ट सीरीज़ भी ऑफलाइन लिख लेंगे बहुत है। 10 टेस्ट भी मतलब ऑफलाइन दे देंगे बहुत है, 5 भी दे देंगे वो भी बहुत है, क्योंकि आपको बस एटमॉस्फेयर चाहिए। मेंस की टेस्ट सीरीज़ आई थिंक आपको ऑफलाइन चेक करानी चाहिए। ऑनलाइन में एआई इतना रिलायबल व्हेन इट कम्स टू चेकिंग वो नहीं है। तो या तो आप वो स्कैन करके भेजें इंस्टीट्यूट्स को जो ऑनलाइन मेंटर प्रोवाइड करें, वो ठीक रहेगा। या फिर आप यही काम करें कि मतलब हो सके तो मेंस की कॉपीज़ आप फिज़िकल मोड में लिख के ऑनलाइन स्कैन करके भेज दीजिए। तो वो टेस्ट सीरीज़ चेक हो सकती है अच्छे से, है ना? 2028 तो सर बहुत लेट है, अभी तो प्लीज़ सिर्फ़ स्टैटिक की रिवीज़न, और रिवीज़न भी नहीं, पहली रीडिंग करना शुरू करिए। जो भी सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगे ना, पढ़ना शुरू कर दीजिए। ज्योग्राफ़ी लगे तो एनसीईआरटीज़ पढ़ ली, पॉलिटी लगी तो लक्ष्मीकांत पढ़ ली, हिस्ट्री लगी तो स्पेक्ट्रम पढ़ ली। जो भी इंटरेस्टिंग लगता है अभी तो बस रीडिंग करिए। अभी बहुत टाइम है, अभी टेंशन मत लीजिए। थैंक यू, वेरी इंसाइटफुल। हाउ मच डिड एम्फेसिस, देखिए एनसीईआरटीज़ अगेन सैक्रोसैंक्ट है, बट सारी एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़नी है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो बोलूँगा कि 6th से 12th एनसीईआरटीज़ पढ़िए, क्योंकि मैंने खुद ही नहीं पढ़ी है। और मेरा प्रीलिम्स में डिसेंट स्कोर है। तो 11th की एनसीईआरटीज़ और 12th की एनसीईआरटीज़ ज्योग्राफी की ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि उससे सवाल आ रहा है। देखिए, हमें पीवाईक्यूज़ बताएँगे कि हमें कैसे पढ़ना है। अगर भाई 100% सवाल में से 80-85% सवाल जो हैं वो लक्ष्मीकांत से निकल ही रहे हैं, तो मैं क्यों 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी पढूँ? यूज़ ही नहीं है। मेरे पास अच्छा सोर्स है उससे। तो वही चीज़ है। लेकिन एनसीईआरटी के लिए डायरेक्टली ज्योग्राफी से कॉपी पेस्ट हो रहे हैं, और ये कई इंस्टीट्यूट्स ने शो किया है। तो आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, तो उसको पढ़िए। सिमिलरली फॉर हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी से सवाल बन रहे हैं। इस बार आया है, जैसे वो कौन-सा था, महेंद्र वर्मन वाला सवाल था, विचित्र-चित्र उसे उससे बोला जाता है, वो डायरेक्ट सवाल था। आराघाट वाला सवाल डायरेक्ट सवाल था। उसके अलावा और भी सवाल थे। राजेंद्र चोला वाला सवाल जो था, एनेक्स करी थी टेरिटरीज़, डायरेक्ट सवाल था। तो एनसीईआरटी से सवाल आ रहे हैं, तो मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है। इकोनॉमिक्स में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स से जो जीडीपी कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, वो आप देखोगे कि बैक एक्सरसाइज़ में सवाल सेम दे रखे हैं, यूपीएससी ने सेम सवाल पूछा है, तो एनसीईआरटी तब उसकी पढ़नी है। बाकी एनसीईआरटीज़ इतनी ज़रूरी है नहीं है, तो उन्हें स्किप कर सकते हैं। सर आपका कौन-सा, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट मीन्स फर्स्ट इंटरव्यू। सो व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी फॉर इकोनॉमी? इकोनॉमी के लिए देखिए मैंने बता दिया कि या तो आप मृणाल सर के नोट्स पढ़ लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना का ना, बस मैक्रो इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी पढ़ के आप सारे सवाल नहीं कर सकते हैं। तो कोचिंग के नोट्स मेरे ऑफ कोर्स थे वाजीराम के, जिसमें अच्छे नोट्स थे वो। आपको 3-4 एरियाज़ पे काम करना है। मृणाल सर ने अच्छे से आइडेंटिफ़ाई कर रखे हैं 6 एरियाज़। उसमें से एक मॉनेटरी पॉलिसी का होता है, एक फिस्कल पॉलिसी का एरिया होता है, एक एक्सटर्नल इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमी का एरिया होता है, एक आपके पास ये वाला एरिया होता है जिसमें ये इंटरनेशनल इकोनॉमी में आ जाएगा, वैसे वो एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नहीं रही। एक आपके पास आजकल ये नया आ गया है, जो ट्रेड डील्स हुई हैं, वो सब वगैरह करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट बन गए हैं। तो कुछ एरियाज़ हैं, है ना? उसके अलावा एग्रीकल्चर इटसेल्फ कम्स अंडर इकोनॉमी, वो भी एक अच्छा एरिया होता है, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। तो इसमें कुछ एरियाज़ हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं, है ना? वो सिर्फ़ मैक्रो इकोनॉमिक्स से नहीं हो सकते। तो इसलिए मैंने कहा था या तो पीएमएफ के नोट्स आप ले लीजिए, श्रीराम आईएएस के नोट्स ले लीजिए, क्योंकि मेरे दोस्तों ने करे हैं और उन्होंने अच्छा बताया है। मैंने नहीं करे हैं, मैंने अपना सिंपल इसी से करा है जो बाजीराम के टेस्ट नोट्स हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो किताब है। लेकिन आपके पास अगर नोट्स नहीं है तो या तो बाजीराम के नोट्स ले लो या फिर पीएमएफ या श्रीराम आईएएस के नोट्स ले लो। रमेश सिंह की किताब है, लेकिन वो बहुत मोटी किताब है। तो उसमें से आप मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी कर सकते हो। टैक्सेशन टैक्सेशन उसका अच्छा दे रखा है, टैक्सेशन आप उससे कर सकते हो। कहीं वो फिस्कल पॉलिसी में आ जाएगा, तो वो सब आप उससे कर सकते हो। बाकी पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2029 सर अभी तो पढ़ लीजिए आराम से, बहुत दूर है आपका अटेम्प्ट। क्या टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है सर, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक मैंने बता दिया है कि उसके एनालिसिस कैसे करना है, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, उसको स्किप मत करना। व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी फॉर इकोनॉमिक्स मैंने बता दिया। सर व्हाट अबाउट इंक्रीजिंग वोकैब इन एसे? देखिए एसे को तो मैं भी डिकोड नहीं कर पाया हूँ। टेस्ट सीरीज़ में मेरे को अराउंड 110, 108 मिलता था। और इन फैक्ट बट यहाँ पे इन दिस एसे आई हैव स्कोर्ड ओनली 95 व्हिच इज़ अ कंपैरेटिवली लो स्कोर। तो एस्से के लिए तो देखो वोकैब की तो ज़रूरत नहीं है। ये बात तो पक्की है, बिकॉज़ इवन टॉपर्स आर नॉट सजेस्टिंग कि आप इंक्लूसिवली वोकैब यूज़ कीजिए। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको जो ग्रामेटिकली
साउंड होना है, वो अच्छे से होना है ना? उसमें आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बाकी इट्स ऑल अबाउट योर आइडियाज़, योर ओन एक्सपीरियंस, योर ओन नॉलेज। पहले तो हो सकता है मेरे 70s और 75 में भी आए हैं, तो उसके हिसाब से अच्छा स्कोर है। बट वहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, लोगों के 130s में भी नंबर आए हैं जो टॉपर्स हैं। तो वोकैब्युलरी वो भी सजेस्ट नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स यू नीड टू बी थरो विद योर आर्गुमेंट्स, काउंटर आर्गुमेंट्स, विद योर आइडियाज़, विद योर एग्जाम्पल्स एंड विद योर ये नीश वो आपको पकड़ना चाहिए टॉपिक का। प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन करने चाहिए सर, डिपेंड करता है कि आपका एक्यूरेसी लेवल क्या है। अगर आपको 100 करना है आप 100 कीजिए, अगर 80 करना है 80 कीजिए। बट बस वही है कि वो डिपेंड करेगा आपके प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ पे। अगर टेस्ट सीरीज़ में आपके ज़्यादा नेगेटिव में जा रहे हैं तो थोड़ा कम कर दीजिए। अगर नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल ही नीचे रह रहे हैं, स्कोर 40s 50s में रह रहा है, तो आपको अटेम्प्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। इट डिपेंड्स बेस्ड ऑन योर स्ट्रैटेजी सर, कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है और आपका लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस क्या है। ये बेसिकली आपको खुद के लिए डिसाइड करना है। बुक्स फॉर सीसैट तो यार मैंने कोई बुक पढ़ी नहीं है सीसैट के लिए, तो आई डोंट थिंक आई वुड बी एबल टू रिकमेंड। बट मतलब कुछ मैंने सोर्सेज बता दिए। मुदित गुप्ता सर इज़ ऑन यूट्यूब, मंजुल सर इज़ ऑन यूट्यूब, उनके टेलीग्राम के चैनल्स भी हैं। काफ़ी लोग वो डालते हैं। तो आई थिंक आप मार्केट में सर्च करेंगे तो सीसैट की कोई ना कोई बुक मिल जाएगी, बट आई वुड नॉट सजेस्ट एनी बुक। उसकी ज़रूरत ही नहीं है यार। यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स हैं, आपको बस सवाल करने हैं और सवाल करने की ट्रिक पता होनी चाहिए। सीसैट में वैसे हो जाएगा। और दूसरा, आपको इंग्लिश और रीजनिंग के सवाल एक्यूरेसी के साथ करने आने चाहिए। वो भी यूट्यूब से हो जाएगा। यूट्यूब इज़ द बेस्ट एडटेक प्लेटफॉर्म फॉर सीसैट। तो वही है। सर मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का हूँ। मैंने इस कैसे सीसैट से टैकल किया, देखिए सीसैट के लिए मैंने बता ही दिया। बेसिक एरियाज़ को देखिए, जो रिपिटिटिव थीम्स हैं, जैसे नंबर सिस्टम है, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस है, ठीक है? ये थीम थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन 2-4 क्लासेस लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यार ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड को तब भी तो आप ऑप्शनल अलग ले सकते हो ना, तो ऐसा कोई बात नहीं है, इतना वो कोई डरने की बात नहीं है। और मैथ्स के सिर्फ़ 10 से 12 सवाल ही करने हैं। इवन इफ यू आर अटेम्प्टिंग 40 क्वेश्चन इन सीसैट और 10 सवाल मैथ्स के कर दिए, 30 सवाल आपको 53 क्वेश्चंस में से 30 सवाल आप सही कर सकते हो आराम से रीज़निंग और इंग्लिश के। इतना तो करने ही चाहिए। और 10 सवाल 27 सवाल में से आप मैथ्स के सही कर सकते हो। 10 सवाल ही करने हैं बस। 40 सवाल का मतलब, क्योंकि मैं टारगेट मानता हूँ कि सीसैट का मिनिमम टारगेट हमारा 70, 80, 90 नहीं होना चाहिए, 100 होना चाहिए। 100 हमें पार करना चाहिए सीसैट में। अगर आप 100 पार करो तब आपका स्कोर 90, 80 भी आएगा तो आप क्वालीफाई कर जाओगे। तो 10 सवाल तो मैथ्स के सही करने हैं। 15 अटेम्प्ट करो, 10 कम से कम सही करो। तो उतना ही है और वो लो हैंगिंग फ्रूट से भी हो जाएँगे। सिंपल सा ट्रिक था, जैसे उस हैंडशेक वाले क्वेश्चन का 11 C2 इतने हैंडशेक्स होंगे। अब C2 P2 क्या होता है ये आपको पता चल जाएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की कोई सी भी क्लास ले लो, यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है। 1 घंटे की क्लासेस हैं तो हो जाएगा। तो प्रीलिम्स के लिए कितना टाइम देना चाहिए? देखिए मैंने तो पिछली बार 5.5 महीने दिए थे। इस बार मेरे पास सिर्फ 60 डेज़ ही हैं, क्योंकि मैं कल से ही आज से ही स्टार्ट करें हैं इनफैक्ट मैंने तैयारी। अभी तो हम 2-4 टॉपर स्टॉप वगैरह में और रिश्तेदारों के साथ बिज़ी थे। बट वही है, कुछ लोग बोलते हैं कि 15 दिन में भी निकालते हैं। तो आप, क्योंकि अभी तक आपका नहीं निकला है या फिर बहुत सारे लोग हैं जिनका नहीं निकला है, मेरे हिसाब से साढ़े 4-5 महीने आपको प्रीलिम्स को डेडिकेटली देने चाहिए, ताकि कोई कसर ना रहे। आप अच्छा खासा मार्जिन से प्रीलिम्स को क्वालीफाई करें। तो और बहुत टाइम है वो उस चीज़ में, क्योंकि रिविज़न ही करना है। नोट्स अब हैं ही अब हमारे पास, करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए और बाकी रिविज़न करना है ना, तो हो जाएगा। I'm a MBBS स्टूडेंट करेंटली फाइनल ईयर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 20। देखो 2029 ऑप्शनल मेडिकल साइंस तो इस बार टॉपर ही ऑप्शनल मेडिकल साइंस के रहे हैं, तो आई थिंक उनका आप टेलीग्राम पेज फॉलो कर लीजिए। मेडिकल साइंस मैं नहीं बता पाऊँगा। बट हाँ, कि 2029 के लिए अभी आपके पास बहुत टाइम है। अभी कॉलेज को ढंग से कीजिए। आई थिंक अभी 3 साल हैं, तो 27 तक तो कम से कम कॉलेज को ही ढंग से कीजिए। उसके बाद 1 डेढ़ साल में यू लास्ट ईयर ऑफ योर मास्टर्स या लास्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। उससे पहले तो एन्जॉय करो यार, इतना टेंशन मत लो। बहुत बड़ी लाइफ है। भैया 11 से कैसे स्टार्ट करें प्लीज़ भई? 11 से स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, अभी आप ग्रेजुएशन के बारे में सोचिए। प्लीज़ इतना ज़्यादा इस एग्ज़ाम को ऐसा मत लीजिए कि आप स्कूल से तैयारी कर रहे हैं। इट्स नॉट नीडेड एंड इट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। प्लीज़ मतलब थोड़ी-सी लाइफ़ एन्जॉय कीजिए, अभी ज़रूरत नहीं है। कॉलेज के लास्ट ईयर तक भी आप स्टार्ट करेंगे, आराम से होगा। ईश्वरजीत इस बारी है रैंक 50, ही आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम देयर ओनली लाइक, और सेकंड अटेम्प्ट में आफ्टर ग्रेजुएशन ही हैज़ बीन एबल टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। एआर 50 है, तो ऐसा नहीं है, है ना? हो जाएगा। सर मेरे नेक्स्ट आईएएस के टेस्ट और अनुभव में 90 मार्क्स आ जाते थे, बट अभी 2 दिए हैं 65-70। देखिए वही बात है कि हर टेस्ट को एनालाइज़ करने का तरीका सेम नहीं होता। हो सकता है ये टेस्ट ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, अनुभव वाला। इस बार एक अनुभव तो मैंने भी दिया था, मेरे भी 97 ही बने हैं। तो इतना ज़्यादा वो नहीं करना है ना? अपने को बस आइडेंटिफ़ाई करने हैं एरिया। जैसे मेरे 2 सिली मिस्टेक्स हुई हैं इस बारी, तो मुझे वो नहीं करनी थी। वही चीज़ आपके साथ हुई होगी कि 3-4 सिली मिस्टेक्स हुई होंगी, वो नहीं करनी थी। बाकी हाँ, जहाँ नॉलेज गैप्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सवाल था पॉलिटी का जो आपको आता ही नहीं था, तो उसको आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको पता चल गया कि भाई एक एरिया है, जैसे सवाल इन्होंने पूछा है, तो मुझे इसको तैयारी करना है। जहाँ भी नॉलेज गैप्स है, हिस्ट्री में नॉलेज गैप है, संगम लिटरेचर पे सवाल है मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो मुझे वो चीज़ पढ़नी है।
और मुझे कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़नी है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंसिवली उस पूरे चैप्टर को मुझे ढंग से पढ़ना है। तो नॉलेज गैप्स भी मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको दिखाती है कि आपके नॉलेज गैप्स कहाँ पे हैं, क्या चीज़ आपको करनी है, किस चीज़ को करना है। ये एनालिसिस से आता है। आपको पता चल जाएगा यार इस सवाल तो मैंने सुना ही नहीं था और वो हो सकता है आईआर का हॉट टॉपिक रहा हो, तो आपको आईआर का अच्छे से करना है, प्लेसेस इन न्यूज़ पढ़ने हैं। हाउ एआई कैन हेल्प इन दिस एग्जाम। देखिए एआई का हेल्प लार्जली मेंस के टाइम पे होता है कि यहाँ पे मैंने भी बहुत यूज़ किया और स्पेशली इंटरव्यू में तो बहुत हेल्प किया, जहाँ पे उसने मेरे डाफ के बेसिस पे क्वेश्चंस बहुत सारे बना दिए और मैं प्रिपेयर्ड था। आई स्कोर्ड 195 इन द इंटरव्यू, तो थैंक्स टू एआई आल्सो, क्योंकि मैं बहुत सारे सवाल उसने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दिए थे जो मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड थे और मेरे फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड थे। बट प्रीलिम्स में आप देख सकते हैं कि इफ यू आर लैकिंग एनी सोर्सेज, आंसर करेक्ट है कि नहीं है, एक्यूरेसी कैसे बढ़ाई जाए, है ना? एलिमिनेशन टेक्निक्स भी लोग हैं, 2-4 वीडियोज़ आप वो भी देख सकते हो कि एलिमिनेशन टेक्निक्स वाली। ऑल्दो उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है ना? ऐसा नहीं है कि 2 का 4, 3 का 4 ऐसा कुछ होगा। बट हाँ, कुछ कभी-कभार कुछ लोग होते हैं जो प्रीलिम्स 6-6 बारी निकालते हैं। मेंस हो सकता है ना निकले, बट प्रीलिम्स में उनको श्योरिटी होती है। लॉजिकल लॉजिकल गेसिंग जिसको बोलते हैं, वो चीज़ वो करते हैं। तो आप उनकी एक आध वीडियोज़ देख सकते हो और आप सोच सकते हो कि ये लॉजिक कैसे लगा रहे हैं। ऑफ कोर्स हर पे ऐसा नहीं होगा कि एक एक वीडियो मैं देख रहा था उसमें वही था कि पहले कोई टिक करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। बट देन अगेन कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से आप जैसे ये तो नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे एक सवाल था 2024 में जब उन्होंने रैंक्स दे रखी थी, तो कैप्टन और कॉमोडोर साथ में नहीं हो सकता। ये एक ट्रिक थी और ये हमेशा है कि कॉमोडोर और कैप्टन का रैंक सेम नहीं है, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, तो उससे सवाल बन रहा है। तो ये सब चीज़ें देखनी है। शुड आई स्टार्ट आंसर राइटिंग नाउ और आफ्टर स्टार्टिंग? देखिए, अब तो आंसर राइटिंग का स्कोप है नहीं, अगर आप 2026 में ही दे रहे हैं तो आंसर राइटिंग अभी तो मेरे हिसाब से देखिए रात में एक आधा आंसर देख सकते हैं और टॉपर्स कॉपीज़ आप एक आध बार पढ़ लीजिए। टॉपर्स कॉपीज़ जो है ना, वो 1 घंटा रात में पढ़ लीजिए, अगर अभी तक आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं किया। वैसे तो इट्स नॉट द आइडियल टाइम फॉर आंसर राइटिंग, करेंगे भी तो 30 दिन मैक्सिमम करिए। अप्रैल मतलब मई के बाद तो बिल्कुल छोड़ देना और इनफैक्ट 20 अप्रैल के बाद ही बिल्कुल छोड़ देना। उसके बाद जब प्रीलिम्स हो जाएगा तब स्टार्ट कर सकते हो। तो आई डोंट थिंक वैसे अभी भी करनी चाहिए। एक आंसर आप लिख सकते हैं, लिखने के लिए अगर अब तक नहीं की है, अब तक कर देनी चाहिए थी, बट ठीक है, इट्स ओके। वी आर नेवर टू लेट इन दिस एग्जाम। क्या प्रीलिम्स के लिए एडिटोरियल डिस्कशन से लाभ होता है? देखिए, एडिटोरियल्स पढ़ना प्रीलिम्स के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। मैं तो न्यूज़पेपर को ही नहीं बोलता, बिकॉज़ न्यूज़पेपर इतना टाइम एफिशिएंट नहीं है। मेंस और इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंटरव्यू के लिए जब आपका ओपिनियन शेप्ड होता है। अभी कोचिंग्स मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं, जो भी न्यूज़पेपर में आ रहा है, वो सब कोचिंग्स प्रोवाइड कर रही हैं इन देयर नोट्स, ठीक है? या फिर इन देयर डेडिकेटेड करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे तो डेढ़ घंटा न्यूज़पेपर में लगेगा। एडिटोरियल तो वैसे भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो छोड़ सकते हो। दीज़ आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एज़ वेल एज़ फॉर द इंटरव्यू। अ, सर मेंस का डेटा और फैक्ट्स रिमेंबर कैसे रखूँ? आंसर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। देखिए, वो तो ज़ीनियर अरोड़ा मैम ने बहुत अच्छे से बताया है कि उनके पास एक ब्लैक डायरी रहती थी जिसमें वो उन्होंने फैक्ट्स लिखे थे। उनका भी थर्ड अटेम्प्ट था। तो दिस कम्स आफ्टर एज़ द अटेम्प्ट्स गो ऑन इंक्रीज़िंग। मैंने भी ऐसे ही किया था। वैसे तो मैंने अपने जहाँ पे मैं सोर्स लिखता था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सोसाइटी से रिलेटेड डेटा है तो वो सोसाइटी वाले पार्ट में लिख रखा है। इकोनॉमी से रिलेटेड डेटा है तो इकोनॉमी वाले जीएस3 के पार्ट में लिख रखा है। तो आप या तो वो कर सकते हैं या फिर आप जैसे उन्होंने बताया एक डायरी रख सकते हैं। उसमें टॉपिक वाइज़ आप बना सकते हैं कि जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का अगर क्वेश्चन आता है तो मुझे ये डेटा कोट करना है। अगर अर्बनाइज़ेशन पे आता है तो मुझे ये डेटा कोट करना है। अगर मेरा सवाल जो है वो इंक्लूसिव ग्रोथ पे आता है तो मुझे ये डेटा कोट करना है ना? तो आप ऐसे ही बना सकते हैं और उनको याद नहीं करना है, उनको बस सोने से पहले एक बार रीड कर लेना है, दैट्स इट। डेटा तो हमेशा बस रीड करते हैं, अपने आप आंसर्स में रिफ्लेक्ट होने लग जाता है, बस उनको रीड करना इम्पोर्टेंट है। सर फोमो से कैसे बचें? जैसे मल्टीपल चीज़ों पे माइंड जाता है प्लीज़। देखिए, नहीं जाना चाहिए ना, वही तो बात है। अगर आप एक एस्पिरेंट हो तो आपको रिस्ट्रेंट की एबिलिटी आनी चाहिए, है ना? रिस्ट्रेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कहाँ, कब, क्या, कैसे करना है। रिस्ट्रेंट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को रोकना बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे अटेम्प्ट्स में हो, जैसे मैं अपने आप को बहुत रोका कि 80 पे मुझे खत्म करना है भाई, 81, 82 जा रहा है तो मेरा नेगेटिव जा रहा है। तो रिस्ट्रेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बस वही है कि अपने आप को रिस्ट्रेन कीजिए किसी भी सोर्सेज़ से, मेडिटेशन कर सकते हैं। सो वही। आई विल कीप दैट इन माइंड। आई एम परफॉर्मिंग नॉट वेल इन सीसैट स्कोर रफली इन द रेंज ऑफ। हाँ, तो ठीक है यार, 90 टू 110 इन सीसैट इज़ वेरी गुड स्कोर। इसमें कोई खराब स्कोर नहीं है। आपको क्या 150 लाना है क्या? आईआईटियंस इसमें नहीं है, मतलब इम्प्रूव इन इंग्लिश सेक्शन। देखिए, इंग्लिश सेक्शन के लिए बस यही है कि अगर कहाँ भी वेग आंसर्स लगे ना, तो इंस्टेड ऑफ नॉट अटेम्प्टिंग एनीवन, अटेम्प्ट ऑल। इट्स द सिंपल स्ट्रैटेजी। बिकॉज़ हर एक चीज़ गलत नहीं हो सकती। जहाँ पे 2 आंसर में वेग लगे, 5 सवाल में अगर वेग लग रहा है ना, पाँचों को अटेम्प्ट करो और दोनों में से कोई एक टिक करो। तो हर चीज़ नहीं होगी और यू विल बी इन द नेट गेन ओनली। अगर आप 3 भी सही से कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप 2 भी सही कर रहे हैं, तब भी 0 का रेशियो आ जाएगा। तो कुछ नेगेटिव नहीं जाएगा। तो दैट इज़ वन थिंग।
व्हेन आई एम राइटिंग आंसर आई हैव टू हैव फियर टू राइटिंग माय अटेम्प्ट इज इन। देखिए फियर टू राइटिंग तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि राइट करना। फियर का रिमूवल तो वही है कि आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी, तो राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए। और लीजिए यार, स्टार्टिंग में 10-10, 15-15 मिनट भी लगते हैं लोगों को एक आंसर लिखने में, इट्स नॉट एन इश्यू। बट वही है कि खुद से लिखिए, एक बार पढ़िए, हो सकता है मॉडल आंसर पढ़िए फिर लिखिए, कोई इश्यू नहीं है। If syllabus is complete and I will give attempt and I start answer writing, of course then you need to start answer writing। आपके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, 2026 के एंड तक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल करिए। प्रीलिम्स में 3 फैक्ट्स पता था बट 1 या 2 में डाउट था, गट्स नहीं आता है, रॉन्ग ना हो जाए। देखिए रिस्क टेकिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगेन कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि रिस्ट्रेन भी करना है और रिस्क भी लेना है, बट देन अगेन 80 तक तो पहुँचना है ना अटेम्प्ट्स में तो रिस्क तो थोड़ा बहुत लेना है। देखिए 50-50 का गेम जहाँ पे आ गया ना, वहाँ पे इतना दुःख नहीं होता, क्योंकि 50-50 में नेट करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर नेट करेक्ट हो रहा है तो 50-50 का गेम हो जाएगा। 40 क्वेश्चन सही हैं और 50-50 का गेम अराउंड 35 क्वेश्चंस में है, 35 में से अराउंड 17 भी सही हो गए तो नेट गेम इज़ इन पॉजिटिव ओनली, तो इश्यूज़ ज़्यादा नहीं होंगे। तो 50-50 इज़ लाइक दिस ओनली कि इवन इफ यू आर रॉन्ग इन दैट, यू वोंट फील बैड अबाउट इट। बट येस समटाइम्स लक आल्सो प्लेज़ एन इम्पोर्टेंट रोल हियर। और क्या पता यूपीएससी उस सवाल को सही या गलत भी कर सकती है, तो रिस्क लेने से मत डरिए। एटलीस्ट टिल 75-80 क्वेश्चंस यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ टेकिंग अ रिस्क। उसके बाद रिस्क टेकिंग अवर्जन हो सकता है, इंटेलिजेंट गेसिंग जिसे बोला जाता है। कंसिस्टेंसी कैसे बनाएँ? देखिए कंसिस्टेंसी तो पढ़ के ऑफ कोर्स, और जैसे मैंने बताया कि अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कशन करके, डेली उनसे बात करके और अपने आप को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रखें। अपने दोस्त होने बहुत ज़रूरी हैं। ज़रूरी नहीं कि वो अटेम्प्ट्स ही दे रहे हों, बाकी भी जगह पे उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। अपनी बॉडी को फिट रखना बहुत ज़रूरी है ना? जिमिंग कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं, आप जा सकते हैं एंड टॉक टू योर पेरेंट्स ऑल्सो समटाइम्स कि उनसे क्या है, कंसिस्टेंसी ऐसे मेंटेन होती है। कंसिस्टेंसी इज़ ऑल अबाउट मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन आता रहेगा तो कंसिस्टेंसी रहेगी। एग्ज़ाम के बियॉन्ड भी मोटिवेशन चाहिए होता है, और ऑफ कोर्स लार्जली मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करके और ये सब अच्छा करके कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। बट देन अगेन दिस एग्ज़ाम इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन तो आपको शो करना ही पड़ेगा, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं हो पाएगा ना। सर कट ऑफ इज़ क्वालिफाइंग पेपर, सीसैट इज़ क्वालिफाइंग पेपर, डज़ इट डिपेंड ऑन कट ऑफ? नहीं, नहीं, वो तो क्वालिफाइंग है, 67.67 ही चाहिए आपको। One last question. Since I joined a little late on this live, I want to know resources on general study subjects for STELS। देखिए वही है कि मैंने बताया पॉलिटी लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटीज़ फॉर ज्योग्राफी 11th-12th एंड इकोनॉमी इज़ लार्जली मृणल सर से आप कर सकते हैं, पीएमएफ के नोट्स या श्रीराम आईएएस के नोट्स अलॉन्ग विद मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड देन हिस्ट्री के लिए 11th-12th, सॉरी ओल्ड एनसीईआरटीज़ एंड क्लास 11 तमिलनाडु एनसीईआरटी अलॉन्ग विद स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा। स्पेक्ट्रम इज़ लार्जली प्रेफरेबल। एंड देन साइंस एंड टेक वगैरह के लिए तो कोचिंग नोट्स ही हैं और करंट अफेयर्स एंड इन सेम फॉर एनवायरनमेंट एंड आईआर। सो यही है। सर हाउ टू मेक कंसाइज नोट्स फ्रॉम बल्की नोट्स? देखिए वो नोट्स कंसोलिडेशन का पार्ट है, और नोट्स कंसोलिडेशन आप देखोगे वो टॉपर्स या वो लोग करते हैं जिनका तीसरा चौथा अटेम्प्ट है। अभी आपको नोट्स बल्की नोट्स की जरूरत नहीं है। अगर आपको करना भी है तो वो आपका टाइम होगा जुलाई से दिसंबर, if you are not able to clear prelims or sorry mains, not able to clear prelims and you're not giving mains। अगर आप मेंस दे रहे हो तब भी आपको टाइम नहीं मिलेगा कंसोलिडेशन के लिए, बिकॉज तब आपको अलग चीज़ें पढ़नी है, टेस्ट देने हैं, वो सब करना है। तो जब भी आपके पास पीरियड खाली है, फॉर एग्जांपल अगर मेंस नहीं होता है या मेंस के बाद आप नोट्स बल्कि नोट्स में से शॉर्ट नोट्स कर सकते हो, अभी उस चीज़ का टाइम नहीं है, तो वो तभी होगा और वो वन पेजर नोट्स के लिए होगा। उसमें अच्छा खासा टाइम लगता है, तो वो तब की आराम से बात करेंगे। आप मेरे से कॉन्टैक्ट में रहिएगा तो आई विल एक्सप्लेन। Thank you for replying. Sir, on an average, how many hours you used to study every day? I think मोस्टली 8 आवर्स, और उसमें से भी इफेक्टिव 6 का ही आता था। 2 घंटे का तो ऐसे ही होता था, बट 8 आवर्स आई यूज्ड टू मैनेज। मेंस में जब आप लिखोगे मेंस का टॉपिक, देन इट विल गो बियॉन्ड 10 आवर्स भी हो जाएगा, कभी 12 11 आवर्स भी हो जाएगा, बिकॉज़ 2 तो आप टेस्ट ही दे रहे हो, तो 6 घंटा तो वैसे ही हो गया टेस्ट का ही, है ना? तो दैट डे आपकी पीक आ जाती है, बट इवेंचुअली आई थिंक 7-8 आवर्स आर मोर देन इनफ। 11th-12th NCERT is sufficient or not? For geography, it is sufficient. Other subjects depends. Yes, sir. Hello. सर इंटरव्यू के लिए क्या-क्या करें? इंटरव्यू के लिए क्या-क्या करें तो आई थिंक तब बात करनी चाहिए जब मेंस का हो जाए, बिकॉज़ मोस्टली पीपल एक्चुअली टॉक अ लॉट। देखिए इंटरव्यू के लिए ऐसा कुछ नहीं है, इंटरव्यू के लिए बेसिकली यही है कि आपको एडिटोरियल्स पढ़ने चाहिए और आपको बैलेंस ऑफ ओपिनियन बनाना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम कंसर्न्ड, आई वाज़ अ लिटिल बिट टू क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, तो मैंने अपने आप को मॉडरेट किया। जो लोग टू सपोर्टिव ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, उन लोगों को अपने आप को थोड़ा क्रिटिकल करना चाहिए। एंड दैट इज़ हाउ बैलेंस ऑफ जजमेंट कम्स इन, बिकॉज़ सब कुछ खराब नहीं है और सब कुछ अच्छा नहीं है। हर चीज़ में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है और सब चीज़ें बुरी भी नहीं है। तो वही चीज़ लानी है।
और दैट इज़ व्हाट यूपीएससी टीचेस यू, और वही करना है ना? सर प्लीज़ रिकमेंड ऑनलाइन कोचिंग्स। देखिए ऑनलाइन कोचिंग्स मैंने तो ली नहीं है, तो अगर आपको जीएस फाउंडेशन कोर्सेज़ हैं तो पीपल से अनअकैडमी एंड पीडब्ल्यू आर डूइंग वेल एंड दे आर चीपर एज़ वेल। ये तो मेरा बाजीराम का था एंड आई रियली प्रेज़ बाजीराम कि उन्होंने अच्छे से मेरा बेस फाउंडेशन बनाया है जिस वजह से किया है। आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी इंस्टीट्यूशन है, बट जस्ट बिकॉज़ पीपल आर आस्किंग, तो बाजीराम का अच्छा है। तो या भैया एनसीईआरटी का कितना रोल होता है यूपीएससी में? बिल्कुल रोल होता है यार। स्टार्टिंग तो बेस तो वही है, तो बेस के ऊपर ही ये सब रहेगा। अ आपका सेशन शेयर कर देंगे, पीपल ऑलवेज व्हाट्स दिस। हाँ जी, बिल्कुल विल शेयर कंसिडरिंग द टीम। सर प्रीलिम्स के लिए क्या रिसोर्सेज होने चाहिए? अब मैंने बता दिया है यार। आप इसको वीडियो को दोबारा से देख लेना, आई हैव टॉक्ड एट लेंथ अबाउट इट। एनसीईआरटी का रोल, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड दिस थिंग। These questions when are going to Lavasana? I think I'll not go this year, sir, because I think foundation courses start beforehand, or I am hopeful of appearing in another mains this year because this will be my last attempt. Because since I'm already in service this year, so I'm planning to give one more attempt to increase or improve my rank. तो आई एम नॉट रियली श्योर। एक स्पेशल एफसी होता है फॉर मेंस अपीयर्ड कैंडिडेट्स, शायद बाद में होता है, उसमें 15 दिन के लिए लबासना होता है। So we are hopeful of going to Labasana next year with an improved rank. सब प्रीलिम्स के बाद ही मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल पहले 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 प्रीलिम्स में तो जब आप बैठ रहे हो तब आपको मेंस प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, आपने टेस्ट सीरीज नहीं लिखी है, ठीक है, अगर आपने एसए को प्रैक्टिस नहीं किया है, बट मेंस का कंटेंट आपको होना चाहिए। बिकॉज वो 3 महीने आप खुद सोचिए, 3 मंथ्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, बट सम अदर पर्सन या मेरे जैसा बंदा या रिपीटर उसको बस रिवाइज कर रहा है, उसको नोट्स नहीं बनाने हैं, तो उसके पास कितना बड़ा एडवांटेज है, टाइम के रिगार्डिंग भी और कॉस्ट के रिगार्डिंग भी। तो उसको बस रिवाइज़ करना है, उसे टेस्ट लिखने हैं। आपको नोट्स भी बनाने हैं और आपको मेंस के लिए पढ़ना भी है, आपको समझना है, नोट्स बनाने हैं, रिवाइज़ करना है, तो आप कितने बैक एंड पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसलिए व्हेनेवर योर इफ योर प्रीलिम्स इज़ स्टक, अगर आपका फ्लकर भी हो जाता है, नो इश्यूज़, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब भी आपका प्रीलिम्स निकले, आपका मेंस निकले, आपको इस लेवल के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि ठीक है भाई प्रीलिम्स निकला, अब मेंस भी निकलना है, और मेंस निकलता है तो ठीक है, इंटरव्यू तक इफ यू आर रीचिंग देन यू आर अ काइंड ऑफ अ सक्सेसफुल कैंडिडेट ओनली, बिकॉज़ आप इंटरव्यू तक पहुँचे हो। मेंस निकालना इज़ नॉट एन ईज़ी थिंग। तो जिस साल भी प्रीलिम्स निकले, मेंस ज़रूर निकले, इस बेसिस पे पढ़ना है। एनवायरनमेंट के क्या रिसोर्सेज़? देखिए एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज़ मैंने जैसे बताया कि 13, 14, 15, 16 चैप्टर ऑफ ये बायोलॉजी, ये आपको क्लास 12th की ये पढ़ के जानी चाहिए, बिकॉज़ एनवायरनमेंट इसमें बहुत अच्छे से दे रखा है, 2-4 स्पेसिफिक टर्म्स हैं। बाकी आप एनवायरनमेंट के नोट्स स्टडी कर सकते हैं। आई वोंट सजेस्ट शंकर का बुक, बिकॉज़ वो बहुत बल्की है और मैंने थोड़े से पढ़ना भी स्टार्ट किया। जो चीज़ मैंने नहीं पढ़ी वो मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने कोचिंग के नोट्स पढ़े थे अपने बाजीराम के। उस बेसिस पे आई हैव गैदर्ड दिस इन्फॉर्मेशन, गैदर्ड दिस थिंग। और बाकी एनवायरनमेंट के लिए आप करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादातर, बिकॉज़ करंट ही आता है, तो करंट के लिए मैंने टारगेट 140 प्लस लिया था। लार्जली आपको कांसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, उसके बाद आपको करंट पे करना है, ठीक है? तो वही है जो इश्यूज़ हैं। थैंक यू सो मच। सर स्टार्ट कैसे करें प्रिपरेशन? करंटली आई एम डूइंग सीसेट पर। देखिए स्टार्ट अगर आपको करना है तो कोई सी भी बुक लीजिए, जो कोई सी भी सब्जेक्ट की जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है। मुझे पॉलिटी बहुत अच्छी लगती थी, तो मैंने लक्ष्मीकांत से स्टार्ट किया था और मैंने पूरी बुक पढ़ी थी स्टार्टिंग में। तो वहीं से स्टार्ट होता है। फिर आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए या इकोनॉमी पढ़ लीजिए, और बस यही है, जो इंटरेस्टिंग लगे उससे आपको स्टार्ट करना है। तो उसी बेसिस पे स्टार्ट कीजिए और फिर इवेंचुअली आपको पता चलेगा, यूपीएससी सर्कल में आएँगे कि ये टॉपर है, इसने ये फॉलो किया, इसने ये किया, इसने वो किया, इसने ऐसा किया, एंड देन यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ दिस होल थिंग। सो ज्योग्राफी ऑप्शनल, आप किसी टॉपिक को ईश्वित को आप कंसल्ट कर लीजिए, उसका आई थिंक टेलीग्राम पेज भी है, एआर 50 दिस ईयर, उसका ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो आई थिंक ही विल बी एबल टू बेटर गाइड। मेरा था ही नहीं, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। फिलॉसफी ऑप्शनल भी मैम मुझे पता नहीं है, हिंदी मीडियम मुझे वैसे ही नहीं पता है, सो आई थिंक आपको किसी ऐसे टॉपिक को कंसल्ट करना चाहिए जिनकी मीडियम रहा हो और जिनका ये ऑप्शनल रहा हो। पीएसआर के लिए आई कैन टेल। सर डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट करें या पहले एनसीईआरटी करें? देखिए अगेन टू मच कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, बट मेरे हिसाब से आपको स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट करना चाहिए जहाँ पे हो। इतना ना हमारे पास टाइम है और इतना ना हमारे पास आई मीन इतना पेशेंस भी नहीं है कि आप पहले एनसीईआरटी सारी 6 से 12 तक करेंगे और वो सब करेंगे। आई हैव डन इट एंड आई डायरेक्टली से मेरे पास तो 11th और 12th में भी ह्यूमैनिटीज़ नहीं थी। पॉलिटिकल साइंस की किताब मेरे पास ऐसा है, बट मैंने नहीं देखी है। तो 11th-12th की, है ना? आई हैव नॉट, मतलब मैंने ली थी, सब लेते हैं, मैंने पढ़ी नहीं। मैंने लक्ष्मीकांत ही पढ़ा है। मैंने इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताब नहीं देखी है। मैंने हिस्ट्री की भी जो लेटेस्ट बुक्स हैं नहीं देखी हैं। मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज़ करी हैं जो
स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो सफिशिएंट है, उनसे एग्ज़ाम निकलता है, तमिलनाडु की बुक है। बिकॉज़ आप देखेंगे उनको पढ़ेंगे भी तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा बिकॉज़ दे विल नॉट हेल्प यू इन एनी मैनर इन दिस एग्ज़ाम। ना उनसे सवाल बनते हैं, ना उनसे ट्रेस आप कर सकते हैं पीवाईक्यूज़ को, और जिनसे आप पीवाईक्यूज़ को ट्रेस ही नहीं कर सकते, उनको पढ़ने का सवाल क्या है? जब लक्ष्मीकांत आपका बेस भी बना रही है और आपको पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड कर रही है, उसके बाद आपको लेकर जा रही है एनालिटिक्स में और फैक्चुअल एस्पेक्ट में, तो आपको क्यों पॉलिटिकल साइंस की किताब पढ़नी है ना? तो वही है। मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड बुक्स आर मोर देन एनफ। दोज़ हू आर कमिंग इनटू प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्ज़ाम आर ऑलरेडी ऑन अ वेरी हाई पेडेस्टल, उनका बेसिक्स लार्जली क्लियर है। उनको बस ब्रश अप करना है अपना नॉलेज को, और आई थिंक मोर देन इनफ है। कौन-सी मिस्टेक से बचना चाहिए? ओके। अ, तो आई थिंक दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन दैट आई विल टेक। तो एंड मिस्टेक से क्या? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। देखिए, कुछ जनरल मिस्टेक से तो हमें अवॉइड करना है, जैसे कि सिली मिस्टेक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा पहला अटेम्प्ट था और मैंने एक सवाल था, मुझे अभी भी याद है कि कौन से इनमें से अ, जो इंसेक्ट्स थे या एनिमल्स थे वो पॉइज़नस होते हैं। 14-24 का सवाल था और उसका मुझे पता था कि तीनों आंसर हो सकता है, लेकिन मैंने लास्ट के लिए सर्कल लगा लिया था, है ना? लेकिन जब मैंने उसे टिक किया, तो मैंने आंसर मुझे करना था ऑल ऑफ द अबव, लेकिन ऑल ऑफ द अबव जनरली आप देखेंगे डी ऑप्शन में होता है। मैंने उस पे डी ऑप्शन लगाया, उसका ऑप्शन था नन ऑफ द अबव। तो ये सिली मिस्टेक्स हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि आपको ऑलरेडी पता है कि भई ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, और मेरा 1.36 मार्क्स से प्रीलिम्स रहा था। अगर वो सवाल सही होता तो मेरा प्रीलिम्स निकल जाता। सेकंडली, उसी साल सेम सवाल में ऐसा सवाल हुआ था कि देयर वाज़ दिस क्वेश्चन कि 4 साइट्स के नाम दे रखे थे, उसमें लिखा था हाउ मेनी ऑफ दीज़ प्लेसेस आर एडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। मैंने वो क्वेश्चन, जबकि सवाल था हाउ मेनी ऑफ दीज़ प्लेसेस आर एडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन 2023। मैंने 2023 पढ़ा ही नहीं। तो मैंने चारों टिक कर दिया, चारों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आई वाज़ वेरी हैप्पी। लेकिन लास्ट में जो क्वेश्चन बना 2023, तो उसमें 2 ही आंसर था, मुझे आता था, मैंने गलत कर दिया। इन सिली मिस्टेक से आपको बचना है। आपको सिली मिस्टेक्स प्रीलिम्स में आप अफोर्ड नहीं कर सकते। मेंस में हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेंस में कवर अप करने को आपके पास 7 सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट्स नहीं है। एक ही ऑप्शन है, एक ही अपॉर्च्युनिटी है, और एक अपॉर्च्युनिटी 1 साल के बाद आती है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले ढंग से पढ़ना है। सारे सवाल आपको आते होते हैं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। उसके बाद उस क्वेश्चन को प्रोसेस कीजिए, हर एक ऑप्शन को एनालाइज़ कीजिए। चाहे पहली रीडिंग ऑफ द एग्ज़ाम में आपको 100 क्वेश्चन देखने में 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 15 मिनट भी लगें, चलेगा। बट अच्छे से प्रिपेयर होके, अच्छे से हर एक सवाल को देख के, हर ऑप्शन को देख के आंसर को टिक कीजिए। उससे पहले जल्दबाज़ी बिल्कुल भी एग्ज़ाम में मत कीजिए। हो सकता है स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन आपको ना आते हों, 20 में से 0 आता हो, और ऐसा होता है एग्ज़ामिनेशन में। बट वहाँ पे भी घबराना नहीं है, 21वें को ट्राई करना है, 22वें को ट्राई करना है, 23वें को ट्राई करना है, और सवाल बनेंगे। काम रहिए, कंपोज़ रहिए, सवाल बनेंगे। बस वही बात है कि ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो यही करते हैं कि स्टैटिक के बाद स्टैटिक को छोड़ देते हैं, करंट अफेयर करने लग जाते हैं। वो भी नहीं करना है। 2023 का पेपर एक्सेप्शनल था, जो मेरे से पहले वाले साल का था। कि उसमें करंट अफेयर लार्जली 50-50 का था। बट स्टैटिक 24 में वापस आया है, 25 में फिर वापस आया है। स्टैटिक हमेशा रहेगा। अगर आपको नहीं भी लगता, तब भी देखिए स्टैटिक का जब करंट अफेयर्स की वेटेज बहुत बढ़ गई, तब भी कट ऑफ 75 पे आ गया। तो तब करंट जब जब कट ऑफ ही खुद ही आ रहा है, जब टॉपर्स ही नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे कर लेंगे, है ना? तो वही बात है कि बस यही हमें स्टैटिक पे भरोसा रखना है। स्टैटिक के बेसिस पे पेपर निकलता है, करंट अफेयर के पीछे नहीं भागना, स्टैटिक को मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना है, करंट अफेयर्स के बाद ऊपर से एक बार पढ़ लेना है। बाकी सब हो जाएगा, कोई ऐसे इश्यू नहीं है। ये 2 मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, और स्टैटिक पे ध्यान देना है। दैट्स इट। बस वही है। लक्ष्मण सही है बहुत, हाँ, बिल्कुल सही है, कोई इश्यू नहीं है। इसमें से अगर हेड और ठीक है। सो थैंक यू सो मच पीपल, थैंक यू सो मच एस्पिरेंट्स, एंड आई होप कि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे आई विल शेयर माय नंबर और शेयर माय इंस्टाग्राम एड्रेस यहाँ पे ना, टू अंशुल 21001 इंस्टाग्राम पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं 9599174120। बाकी थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। Hope you'll all clear prelims and all of you clear this 2026 UPSC CSC examination. Thank you and have a great day.